السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور زبردست ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ اس ناول کا نام ہے میں اس کے نکاح میں ہوں اور اس کی رائٹر ہے اقرا خان۔ تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ خوشیوں بھرے ماحول میں چمکتے ہوئے چہروں میں اس کا چہرہ واضح تھا، لیکن بے رخی تھی، سہمی سی تھی، ڈری سی تھی۔ وہ زبان زنجیروں سے بندھی ہوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ نکاح وقت کی رسم ہے یارو، کچھ نہ کہہ سکو گے تم۔ کہتے ہیں محبت کا دوسرا نام نکاح ہے، اور نکاح دو لوگوں کے درمیان ہونے والے کانٹریکٹ یا دو لوگوں کے درمیان رضامندی سے طے پانے والا ایک پاکیزہ رشتہ۔ لیکن کئی دفعہ اس رشتے کو کرنے سے پہلے لڑکے کی رضامندی تو دیکھی جاتی ہے اور لڑکی کی رضامندی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسے معاشرے کی زنجیروں سے عزت کے جال میں پھنسا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صرف چپ رہنے کو۔ یہ جیسے مرد ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر دستخط کرتے ہیں اور عورت کو وہ اپنی زندگی میں آنے کا حق تو دے دیتے ہیں، لیکن صرف دنیاوی ضروریات تک۔ لیکن یہ نکاح نامہ ایک لڑکی کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ صرف دستخط نہیں کرتی بلکہ اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دیتی ہے، اس انجان کے نام جو اب اس کا مجازی خدا ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش اور غم میں اس کا ساتھ دینے کے وعدے کرتی ہے، اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دیتی ہے۔ یہ لڑکی کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحات میں سے ایک لمحہ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے ندامت کے علاوہ کچھ نہیں۔ بارات آنے والی ہے، پورا گھر خوشیوں سے چہک اٹھا۔ اماں اس نے بے چینی سے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک ڈر کی لہر تھی، سہمی سی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارے ابا جیسے بھی ہیں سخت دل، بے رحم، لیکن مجھے ان پر پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی ایرے گرے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ رافع بیگم نے روشائل کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، لیکن انہیں اندر سے ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں برا نہ ہو جائے، کیونکہ گھر میں روشائل کے ابا اور ارشد علی کے علاوہ کسی نے اس کے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ اب کیا یہاں رونا دھونا کرتی رہو گی یا اسے باہر بھی لے کر آؤ گی؟ بہت رو لیا ہے، رخصتی کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھ لو۔ ارشد احمد چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے لہجے میں تلخ کلامی تھی جو دلوں میں آگ لگ جاتی تھی۔ باپ جیسی نرم کلامی ان میں نہیں تھی۔ روشائل کی 3 بہنیں تھیں، سب سے بڑی دانیہ، منجلی روشائل اور سب سے چھوٹی تسمیہ، اور سب سے چھوٹا بھائی علی۔ گھر کا ماحول ہمیشہ ڈرا اور سہما ہوتا تھا۔ وجہ ان کے ابو ارشد علی کا غصہ تھا۔ اپنی بیٹیوں پر طعنہ بازی، ان کو معاشرے میں بدنام کرنے کے طعنے دیتے تھے۔ اکثر روشائل اس کا شکار بنتی کیونکہ اس کی بڑی بہن دانیہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارشد احمد کے لگاتار نہ کہنے پر آخر اس نے گھر سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی وجہ سے ارشد احمد کا غصہ اپنی بیٹیوں پر اور زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے روشائل اور تسمیہ کی پڑھائی رکوا دی۔ روشائل کالج سے آخری سال میں تھی جب اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، جبکہ تسمیہ نے 10ویں جماعت کے امتحان دیے تھے۔ اس کے بعد وہ کالج میں نہیں جا سکی، البتہ ان کا چھوٹا بھائی اسکول جاتا تھا۔ شاویز سکندر نام ہے میرا، سن لیا تم لوگوں نے؟ شاویز سکندر، مرزا سکندر کا اکلوتا بیٹا، جس کے لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنا مشکل نہیں، تو پھر وہ کیسے نہیں مجھے مل سکتی؟ کیسے نہیں مل سکتی؟ شاویز کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، منہ سے آتی شراب کی بدبو صاف واضح تھی۔ وہ نشے میں دھند تھا، ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل جو آدھی ہو چکی تھی۔ ابے سالے کتنی دفعہ بتا چکا ہوں تجھے میں کہ تیری نامعلوم محبوبہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ جا چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن تو ہے مانتا نہیں۔ شاویز کے دوست شہریار نے اسے بتایا، جو گاڑی کے آگے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جو جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ میری ہونے والی بیوی، جیسے شاویز نے کہا۔ اس کے دوسرے دوست جواد نے بات کاٹی، بیوی تھی ابے، بچپن کی کہیں منگنی تھی، نکاح نہیں تھا جو ابھی تک تیرے انتظار میں ہوتی، اور وہ ابھی تک تجھے بھول چکی ہوگی، اور تو ہے پاگل مجنوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا ہے۔ جیسے جواد نے کہا، شہریار اور ارسل نے کہکا لگایا۔ شاویز، شہریار، جواد اور ارسل تینوں بہترین دوست تھے، چاروں ہی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، لیکن شاویز ان تینوں سے زیادہ امیر تھا، مرزا سکندر کی پراپرٹی کا اکلوتا وارث جو تھا۔ اچھا شاویز، یار کوئی ایڈونچر ہی کرتے ہیں آج، ہمیں ایسا ایڈونچر کر کے دیکھا جو
किसी ने ना किया हो आज तक, जैसे अरसल ने कहा। शावेज ने साथ साथ गाड़ी पर रखी एक और शराब की बोतल उठाई और लड़खड़ाते हुए गाड़ी से टेक आगे की और चंद कदम आगे बढ़ाए। कौन सा ऐसा एडवेंचर है जो तेरे यार ने आज तक नहीं किया? कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो मैंने ना किया हो, शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, जवाद ने तंज किया, अगर ऐसा है तो आज फिर ये कर क्या? शावेज ने जवाद की तरफ देखा। ये जो घर है, ये जो सामने घर है ना, जिसे जवाद ने कहा। सबकी नज़रें इस घर की जानिब मतवज्जो हो गईं जो लाइट से जगमगा रहा था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे सारी चांदनी इसके घर को अपनी लपेट में ले लिया। बजते हुए बैंड बाजे चीख चीख कर खुशी का इजहार कर रहे थे। जवाब, तेरे कहने का क्या मतलब है? अरसल ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा जो तंजिया मुस्कुरा रहा था। मतलब ये कि हमारा एडवेंचर बॉय से शादी के घर में जाए और एक ऐसा एडवेंचर करके आए जिससे हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएं। इसे जवाब ने कहा। शहरियार और अरसल चूम गए। अबे पागल हो गया है, शादी का घर है और नशे में है, और वो अगर इस हालत में जाएगा तो मार खा कर ही आएगा। और देख, बारात आ रही है, मतलब लड़की की शादी हो रही है। जवाब, तू होश में तो है? जैसे शहरियार ने कहा। शावेज आगे बढ़ा और कहा, बस सब चुप कर जाओ। तुम लोग मैं इस घर में जाऊंगा और तुम सब देखना, ऐसा एडवेंचर करूंगा कि तुम सब लोग हैरान रह जाओगे। शावेज की आवाज़ में नशापन था। साफ जाहिर था कि वह अंधाधुंध नशे में था और नशे की आड़ में इसने शादी वाले घर जाने का फैसला कर लिया था। जवाद हंस रहा था और शावेज को उकसा रहा था। तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन इसने अपनी इज्जत अपने दोस्तों के सामने अपने आप को सबसे बड़ा एडवेंचर साबित करने के लिए जाना पड़ा। लेकिन शहरियार और अरसल इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन शावेज ने सबकी अनसुनी की और शादी वाले घर की तरफ बढ़ गया। शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए? आरफा बेगम ने चलाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ है? सही और अच्छा भला तो है, वैसे भी तेरी बेटियों के लिए यही बेहतर है। खुदा का खौफ करो अरशद, वो तुम्हारी भी बेटियां हैं और मेरी फूल जैसी बच्ची को इस 40 साल बूढ़े आदमी से ब्याह रहे हो। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपने शोहर कहते हुए, जो अपनी बेटियों से इस कदर नफरत करेगा कि अपनी 25 साल की बेटी को किसी के भी हाथ देने लगे हो। अरे बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन तुम जैसे संगदिल इंसान को क्या पता। मैं अपनी बेटी को उसके साथ नहीं जाने दूंगी, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी, जैसे राफिया बेगम ने कहा। अरशद ने इसके मुंह पर इस कदर जोर से थप्पड़ सेध किया और अपनी वहशी आंखों से कहा, वो मेरी बेटियां नहीं हैं, सुन लिया तुमने? वो तेरे शोहर की पहली औलाद है। मेरा सिर्फ एक बेटा अली है और तेरी बेटियों की यही औकात है। अरे शुक्र करो मैं इनकी शादियाँ कर रहा हूँ, वरना इनको कौन रईसजादे रिश्ते देने वाले हैं। राफिया बेगम वहीं चुप हो गई। इसके पास अब बोलने को रह ही क्या गया था। रोशाइल खामोश थी, बल्कि खामोशी इसकी आवाज़ पर चुप की मोहर लगा रही थी। वो संगदिल हो चुकी थी। वो कुछ नहीं कह सकती थी, कुछ भी नहीं। और आखिर वो कह भी क्या देती? क्या इसके कुछ कहने से अब सब रुक जाते? नहीं, वो कभी नहीं मानते। उन्होंने आज तक इन्हें सिर्फ बाप का नाम दिया था, लेकिन प्यार नहीं। वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के प्यार को तरसती रही। इसके सगे बाप यानी राफे के पहले शोहर का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद राफे ने अपने दूर के रिश्तेदार यानी अरशद अली से शादी निकाह कर लिया। इस दिन के बाद आज तक अरशद ने रोशाइल, दानिया और तस्मिया को अपनी सगी औलाद तरह प्यार नहीं किया। रुको, जैसे शावेज ने कहा। सब लोगों की तवज्जो इसकी तरफ मतवज्जो होगी जो हाथ में शराब की बोतल पकड़े लड़खाते हुए चल रहा था। इसकी आवाज़ सबसे अलग थी। सब लोगों के दिलों में कई तरह के सवाल पैदा होने लगे। ये शादी नहीं हो सकती, जैसे शावेज ने कहा। वहाँ मौजूद सब लोगों की नज़रें वही मजमद हो गई। सब इसकी बात पर हैरान हो चूँकि रोशाइल के साथ बैठा दूल्हा वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। रोशाइल के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उसने अपना घूंघट उतारना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अबे कौन है तू शराबी? यहाँ कैसे आ गया तू? चल निकल यहाँ से। अरशद अली ने शावेज को धकेला। मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती, जैसे शावेज ने फिर कहा। और दूल्हा आगे बढ़ा और गुस्से से इसका गिरबान पकड़ा और कहा, साले कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? हाँ हाँ, ये तो इनकी बेटी बता सकती है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जैसे शावेज ने कहा। रोशाइल का दिल मुंह को आ गया। इसने घूंघट उतारा और एक नज़र इसकी तरफ देखा। ब्लैक टी शर्ट पैंट में मलबूस था। इसकी सुर्ख आंखें और बाल आंखों पर पड़ते थे। गहरी आवाज़। अरशद अहमद, इस दूल्हे ने रोशाइल की तरफ देखा जो नहीं नहीं मैं सर हिला रही थी। रोशाइल के चेहरे के तासुरात से साफ वाज़ह था कि वो शावेज को नहीं थी पर ये ऐसा क्यों कह रहा था।
बकवास बंद करो, मेरी बेटी को कैसे पता होगा मेरी बेटी का तुझसे क्या रिश्ता है? रिश्ता? हाँ हाँ अभी बुढ़े मैं तेरी बेटी का आशिक हूँ, तेरी बेटी का यार। अरे यार, इसने खुद तेरी बेटी ने आज मुझे बुलाया है ताकि मैं ये शादी रोक सकूं, जैसे शावेज ने कहा। खुदा कसम आसमान फट गया। राफे का कलेजा मुंह को आ गया। वहाँ खड़े सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। नहीं नहीं अब्बा, मैं इसे नहीं जानती, मुझे नहीं पता कौन है ये, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरशद अली ने कहते हुए रोशाइल के चेहरे पर थप्पड़ सीध किया। अब्बू खुदा का वास्ता है मुझ पर यकीन करे, मैं इन्हें नहीं जानती और ना ही मैं आज तक इससे मिली हूँ। चुप कर। अरशद ने अपना सर दूसरा हाथ उठाने लगे लगे थे कि राफिया ने इनका हाथ रोक लिया था। अली के अब्बा, रोशाइल सच बोल रही है, इसे वाकई नहीं इस लड़के का पता, तो क्या ये खुद आ गया है? बताओ, इसने इसने बुलाया है तो आया है जैसे अरशद ने कहा। शावेज लड़खड़ाया और शराब की बोतल नीचे फेंकी और कहा, हाँ अंकल, मुझे आज रोशाइल ने खुद यहाँ बुलाया है। बताओ ना रोशाइल, सबको हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, रात को घंटे घंटे तक बातें करते थे। बताओ शावेज आज किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, वो नशे में धुन था। इसे ये तक नहीं मालूम था कि इसके झूठ से किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी। पहली बहन भाग गई, छोटी भी वैसे ही निकलेगी आज। एक आशिक सामने आया, कल को पता नहीं कितने और आएंगे। बारात में मौजूद एक शख्स ने कहा, चलो भैया, हम इस बचलन लड़की के साथ कोई निकाह नहीं रखना। कहते हुए वो रोशाइल के आगे थूकते हुए चले गए। वो वही खड़ी थी, बस चुप होगी, इसकी ज़बान चुप होगी। क्या कहती, वो क्या सफाई देती, कोई इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबके सामने इसकी इज्जत को छाला गया। अब वो कोई इसे इसे नहीं थामेगा। अब वो अल्लाह का वास्ता है, मैं आपको कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कह रहा है। रोशाइल ने अपने बाप के अब्बा के पाँव पकड़ लिए और सारी बराती जा चुके थे। दफ़ा हो गंदी बदचलन बाप की औलाद। अरशद ने रोशाइल को लात मार कर पीछे किया और शावेज को पकड़कर चेयर पर बैठाया, जो पूरी तरह नशे में धुन था। कारी साहब, इसका निकाह पढ़वाएं। जैसे अरशद अली ने कहा, रोशाइल की सांसें रुक गई। इसने अपने बाप की तरफ देखा, जो अब इसका निकाह इस नशे में धुन शख्स के साथ कर रहे थे। वो हार गई। आज इसे इसकी ज़िंदगी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। रोशाइल का चेहरा आंसू से भीग चुका था। आज इसके दामन पर अपनी बहन की तरह आवारा बदचलन बदकिरदार का झूठे दाग लग चुके थे, जिसे वो अगर सारी ज़िंदगी भी धोती रहती वो कभी मिटने वाले नहीं थे और ना ही हल्के होने वाले थे। आज शावेज सिकंदर ने इस मासूम की ज़िंदगी एक एडवेंचर के आड़े में तबाह कर दी। आज इसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। इसकी किस्मत ने कैसा खेल खेला कि इसका निकाह शख्स के साथ हो गया, जो पूर चोर चोर नशे की हालत में था, जिसे ये तक नहीं पता चल रहा था कि दस्तक कहाँ करने हैं। निकाह हो चुका था। राफे बेगम वहीं चुप बदनामी के तानों से डरी खड़ी थी। चल उठ। रोशाल के बाप ने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। आज से ये तेरी बीवी है, अब चाहे इसके साथ जो मर्जी करे, इसे मार या रख, जो भी, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि हमारे लिए मर चुकी है बच्चन लड़की। अब्बा, मेरी एक दफ़ा बात सुने, जैसे रोशाइल ने कहा। अरशद अहमद ने इसके चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ सीध किया और कहा, दफ़ा हो जा बदकिरदार, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तू है आज वो ज़ाहिर हो चुका है, रो क्यों रही है? अब तो तेरे आशिक से निकाह हो गया है तेरा, और निकल जा अब हमारी ज़िंदगी से। अब कभी हमारे घर का रुख ना करना, सुन लिया तुमने? अब्बा, आपको खुदा का वास्ता ऐसा मत करें मेरे साथ। अम्मा, आप अब्बा को समझाए ना, वाकई मैं इसे नहीं जानती, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए सब चुप क्यों हो गए हो? कुछ तो बोलो। तस्मिया अम्मी वो चला रही थी, लेकिन कोई इसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। अरशद अहमद इसे बाजू से पकड़ कर सीटा और बाहर दरवाजे तक ले गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अरशद अहमद ये कहते हुए दरवाजे। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो बेहोश आवाज़ चढ़ रहा था। शावेज को होश तक नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। रोशाइल इसके पीछे पहुँचे तक थी। इसकी सिसकियों से इसका चेहरा बिक चुका था, लेकिन वो नशे में धुंध आगे बढ़ रहा था। इसे इसके साथ जाना पड़ा, और वो करती ही क्या, इसके सारे रास्ते तो बंद कर दिए थे शावेज ने। आज इसे वो अपनी सारी ज़िंदगी इसके नाम कर बैठी थी। अबे शहरियार, ये शावेज किसको साथ लेकर आ रहा है? जैसे शहरियार ने देखा, वो वही हक्का बक्का रह गया। शावेज आगे नशे में धुंध लड़खड़ा कर चल रहा था, उसके पीछे पीछे वो चल रही थी। लो कर आया मैं एडवेंचर, जैसे शावेज ने कहा। अरसल शावेज के करीब गया और कहा, अबे साले, ये क्या करके आया है? कि कुछ नहीं मैंने किया, निकाह कर लिया बे तुमने इसके साथ, जैसे अरसलान ने कहा। शावेज हंसा और कहा, नहीं नहीं, बस एक जगह दस्तक किए हैं और पता है मैंने इधर जाकर
کیا کہا جیسے شاویز نے کہا، روشائل کا دل پھٹ گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ شخص جو نکاح کو ایک دستک کی حد تک سمجھتا ہے، وہ ساری زندگی سے کیا تحفظ دے گا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا، جیسے وہ گھر کا دروازہ کھولنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ جیسے اس نے رخ بدلا، وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، وہ دونوں ہاتھ زور سے پیچھے تھے، سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کون ہیں میڈم، اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جیسے شاویز نے کہا۔ روشائل نے چونک کر شاویز کی طرف دیکھا۔ وہ میری زندگی میں آیا تھا، خوابوں کا شہزادہ بن کے نہیں، زندگی کچھ ہی پلوں میں برباد کر گیا، میری اپنے نام میری زندگی لے گیا۔ یہ کیسا نکاح رشتہ ہے، کچھ ہی پلوں میں مجھے ہی بھول گیا۔ بیوی ہوں تمہاری، روشائل نے اس قدر زور سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹا۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کون ہوں میں؟ کیا ملا بتاؤ مجھے، کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا، کیوں میرے دامن پر کیچڑ چھڑا تم نے، بتاؤ مجھے۔ روشائل نے شاویز کا گریبان پکڑا تھا۔ جیسے گیٹ کیپر نے یہ سب کچھ دیکھا، وہ جلدی سے اندر آیا۔ گھر کی لائٹس آن ہو گئی۔ گھر نہیں، وہ ایک عالیشان بنگلہ تھا۔ رئیسزادے ہونا بڑا شوق ہے ایڈونچر کرنے کا، کہ یہ تک بھول جاتے ہو کہ انسانی زندگی کے ساتھ ہی ایڈونچر کر چھوڑتے ہو۔ کون ہو تم؟ سبین مرزا اور مرزا اسکندر اپنی آنکھیں ملتے ہوئے نیچے آئے۔ رات کے 1 بج رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کون ہو تم، اور میرے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہو؟ جیسے سبین نے کہا۔ شاویز بولا، ماما مجھے نیند آئی ہے، میں اپنے کمرے میں چلتا ہوں۔ رکو شاویز، مرزا اسکندر نے شاویز کو آواز دی، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو اس بچی کے ساتھ؟ روشائل کو مرزا اسکندر کی آواز میں اپناہٹ محسوس ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکندر صاحب؟ شاویز کو کیسے پتا ہوگا؟ یہ تو یہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے نا۔ بتاؤ اب، کیا یہاں کھڑے کھڑے روتی رہو گی یا کچھ بتاؤ گی بھی؟ وہ ابھی کچھ کہتی، شاویز نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، ماما وہاں اس کے گھر میں گیا ایڈونچر کے سلسلے میں، اور وہاں جا کر میں نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باپ نے کہا کہ اس کا یہ نکاح ہے، شادی نہیں ہو سکتی، کہ یہ میرے نکاح میں ہے۔ اب کیا روتی رہو گی، کیا بتاؤ گی بھی کچھ؟ جیسے سبین نے کہا، اور مرزا اسکندر نے اس کی بات کاٹی، کیا بتانا ہے؟ اب بتانے والا کچھ رہ نہیں گیا۔ تمہارا بیٹا اس کی زندگی تباہ کر آیا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تم نے اسے یہ تربیت دی کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے اس 2 ٹکے ایڈونچر کی خاطر اس کی زندگی تباہ کر دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے آنسو کو اہمیت رکھتے ہیں؟ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود بلایا ہوگا۔ ویسے بھی ان چھوٹے گھر والے لوگ اکثر بڑے گھروں میں رہنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ مکار کے آنسو آپ کو سچے لگ رہے ہیں؟ سبین مرزا کی باتوں میں ایک تلخ لہجہ تھا، وہی لہجہ جو اس کے ابا میں تھا۔ اس کی طنزیہ باتیں روشائل چپ چاپ سنتی رہی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سبین نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ روشائل۔ تو بی بی روشائل، ہم پر اتنا احسان کرو کہ یہ رونا دھونا بند کرو، اور اوپر اسٹور روم میں ہے، وہاں جا کر سو جاؤ۔ آج سے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اگر اس کے گھر میں رہنا ہے نا تو اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا ہوگا، سن لیا تم نے؟ اور ہاں، ایک بات اور۔ سبین روشائل کے قریب آئی، اگر تم نے میرے بیٹے کے کمرے یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو مجھے دیر نہیں لگے گی تمہیں اس گھر سے نکالتے ہوئے۔ جینا بھی نہیں ہے بس میں، رونا بھی نہیں ہے بس میں، دوریاں سہی نہ جائیں، کیسی ہے لگن کی رسمیں۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے وہ اب یہی رہنا چاہتی تھی، اور جاتی بھی کہاں؟ سارا کچھ تو برباد ہو گیا تھا۔ اس کے سارے اپنوں نے اس کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا شوہر شاویز سکندر محض ایک نکاح نامے پر دستخط کرنے کے علاوہ اب اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ کہنے کو تو وہ اس کی بیوی تھی، لیکن اسے بیوی کا کوئی حق نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں محض ایک کام کرنے والی نوکر کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نہیں ابا، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں زمین پر لیٹی تھی۔ دلہن کے لباس میں ملبوس ہونے کی وجہ سے اسے شدید گرمی لگ رہی تھی۔ سوتے ہوئے ابھی اسے وہی واقعہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ شاید اب یہ واقعہ روشائل کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ امی، روشائل کی اچانک آنکھ کھلی۔ اسے اس رات سے جڑی ہر بات یاد آ رہی تھی، اور اس کی راتوں تک کی نیند اڑا دیتی تھی۔ روشائل کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہہ رہا تھا، اور بار بار سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں، جس میں نہ کوئی پنکھا تھا اور لائٹ کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس گرمی کی حدت کو وہ برداشت نہ کر پائی، اور اچانک وہ باہر نکلی۔ ابھی وہ باہر نکلی تھی کہ سامنے سے سبین اور شاویز سکندر آ رہے تھے، مسکراتے ہوئے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی گہری آواز پر
और पुरकशिश आंखें, पेशानी पर हल्के हल्के बाल गिरते थे जिसे वो बार बार अपने हाथ से पीछे करता। ब्लैक कुर्ता शलवार कुर्ता में जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक की हुई थी। वो इस रात वाला शराब में चूर शावेज मालूम नहीं हो रहा था। अभी शावेज रोशाइल की तरफ देखता, सबीनी की इस पर नज़र पड़ी। बेटा तुम नीचे जाओ, नाश्ते की टेबल मैं आती हूँ। इसे मुस्कुराकर सर हिलाया, यूँ मानो इसे सब कुछ भूल गया हो, सब कुछ जो इसने किया था। शायद वो रोशाइल को भी पहचानने से इनकार करते। तुम बाहर कैसे निकले? कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे बेटे के सामने अपनी मनुष्य शक्ल को दिखाना तक नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हें शौक है ना इसके सामने जाने का, इसे बताने का कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। ओह अच्छा, मैडम को गर्मी लग रही है तो जिस घर से आई थी वहीं से कपड़े नहीं ला सकती थी क्या? या माँ बाप ने बस ऐसे लावारसों की तरह रुखसत कर दिया? सबीन की बातें दिल चीर देने वाली थी। रोशाइल बेबस थी, वो कुछ नहीं कह सकती थी। कोई कपड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें? नहीं नहीं आंटी प्लीज़, बहुत गर्मी है, रोशाइल ने एक बार फिर कहा। गुलनाज जैसे सभी ने आवाज़ दी। गुलनाज फ़ौरन आई। जी बीबी जी, अपने कोई कपड़े लेकर आओ जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हों। लेकिन क्यों बीबी जी, मैं जो कह रही हूँ वही करो। कपड़े लेकर आओ, वो इसे दे दो, और कल से तुम ना आना काम पर। सबीन ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें नई काम वाली मिल गई है। रोशाइल सहम गई। वालेकुम सलाम खाला। वालेकुम सलाम मेरी जान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो देखें, फिर मैं आ गई खाला की जान, सभी ने कहते हुए फिर सारा को अपने गले लगा लिया। मैंने सारा कमरे की सफाई कर दी है, अब क्या करना है? रोशाइल हाथ में कपड़ा पकड़े लाउंज में दाखिल हुई। खाला ये कौन है? सारा ने हैरानगी से रोशाइल की तरफ देखा जो सादा कपड़ा में बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी। ये मैंने कितनी दफ़ा कहा है, जब कोई मेहमान आया है तो तुम अपनी शक्ल लेकर ना आया करो। जाओ दफ़ा हो जाओ, शावेज का कमरा साफ़ करो। और हाँ, सिर्फ कमरा ही साफ़ करना, सभी ने दांत पीसते हुए कहा। सारा के सामने इसे कहना पड़ा क्योंकि आज तक वो कभी शावेज के कमरे में नहीं गई। खाला वैसे ये कौन है? मेरा मतलब है देखने में अच्छी भली लग रही है, सारा ने तशवीश करते हुए पूछा। हाँ वो बेटा, ये मुझे बाहर बाजार में मिली थी, बेचारी गरीब है ना, तो मैंने तरस खा कर रख लिया। सबीन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। खाला मुझे सच बताएं, बात क्या है? सारा के लहजे में गर्मी पैदा हुई। वो बेटा शावेज, इस तरह सभी ने सारा वाक़या सारा को बताया। जैसे सारा ने सुना इसके रोकड़े खड़े हो गए। क्या शावेज की बीवी है ये? नहीं नहीं बेटा, कोई बीवी नहीं है ये, नशे में कोई निकाह नहीं होता। सभी ने बात को संभालने की कोशिश की। बस करे खाला, मुझे पता है अपने बेटे की साइड ना लें, लेकिन चाहे निकाह नशे में हो या हो, नशे में किया लेकिन सारी रस्म के मुताबिक तो किया ना। हक महर से लेकर गवाह तक सब कुछ तो है निकाहनामे में, और आप कह रही हैं ये निकाह नहीं है? देखो मेरी जान, सीधी सी बात है, शावेज इस निकाह को नहीं मानता। फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, मंगनी तुम दोनों की हो चुकी है, शादी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन खाला इसका क्या, वो इसके निकाह में है? और वैसे भी शावेज ने क्या खुद कहा है कि वो इसके निकाह को नहीं मानता? नहीं नहीं बेटा, लेकिन मुझे यकीन है उसे तलाक दे देगा। बस मिर्ज़ा साहब की आउट ऑफ कंट्री जाने की देर है, फिर देखना कैसे मैं इसे दिखे देख कर बाहर निकालती हूँ। ठीक है खाला, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। ठीक है मेरी जान। मामा वो हड़बड़ी से घर में दाखिल हुआ। शावेज बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, वो फाइल रह गई थी, बस इसी के सिलसिले में आया हूँ। शावेज, सारा ने इसे आवाज़ दी, लेकिन वो जल्दी से अपने रूम की जानिब बढ़ा। सारा, वो मनूस अभी भी शावेज के कमरे में है, सफाई के लिए गई थी। सबीन घबरा कर खड़ी हुई। रोशाइल शावेज के वॉशरूम से बाहर निकली थी कि अचानक शावेज सामने आ गया। वो धक से खड़ी हो गई, इसका पाँव शावेज के शूज़ के ऊपर अचानक आ गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रोशाइल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, तब से मुसलसल यही कह रही थी। शावेज ने जैसे रोशाइल को देखा वो वही मंजमद हो गया। इसके चेहरे के तासुरात से मालूम होता था कि इसने रोशाइल को पहचान लिया था। वो अभी तक अपने हाथों को आगे मुंह पर किए खड़ी थी। कुछ नहीं होता, शावेज ने जैसे कहा। वो भागकर भाई जाने लगी थी कि आगे सबीन और सारा खड़ी थी। आंटी अभी रोशाइल कुछ कहती कि सबीन ने एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। पर चलन बदकिरदार लड़की, क्या चाहती हो तुम? इतने बड़े घर की बहू बनोगी? तो फिर तुम भी कान खोल कर बात सुन लो, मैं तुम्हें इतना जलील करूँगी कि तुम खुद इस घर से चली जाओगी। खाला छोड़े इस 2 टके की लड़की के, क्या मुंह लगना। जैसे उन्होंने शावेज को नीचे आते देखा, उन्होंने रोशाइल को धक्का देकर पीछे किया। हेलो बिजी बॉय। सारा मुस्कुराते हुए शावेज के करीब गई। शावेज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय अच्छा, कहाँ जा रहे हो? जैसे सारा ने सवाल किया, शावेज ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, ये फ़ाइल बाबा को देनी थी, अभी वही देने चला हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? सॉरी सारा, कल कोई प्लान बनाते हैं।
भला कोई अपने मंगेतर के साथ ऐसा करता है? खुश नसीब हो तुम जिसे मुझ जैसी मंगेतर मिली। हाँ हाँ, शाहवेज़ ने कहकर लगाया और बाहर की जानिब बढ़ गया। हेलो, शाहवेज़ ने फ़ोन उठाते ही कहा। बताओ क्या पता चला? शाहवेज़ की आवाज़ में तजस्सुस था। साहब बहुत मुश्किल है, ना तो आपके पास इनकी इस लड़की की कोई तस्वीर है जिससे इसकी शिनाख्त कर ली जाए। आप इतने बड़े शहर में से ढूंढते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे भी हो, जो भी करो, मुझे वो लड़की का पता चाहिए। शाहवेज़ ने गुस्से में कहते हुए फ़ोन बंद किया। देखिए अली के अब्बू, एक दफ़ा तो अपनी बेटी से मिलाने दो। मुझे पूरा यकीन है रोशाइल ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़का झूठ बोल रहा है। बकवास बंद बंद करो। तुम्हें कहा अपनी बेटियों में गंदगी नज़र आती है। अगर आती होती ना तो अपनी बड़ी बेटी को फरार होने से पहले रोक लेती। और छोटी जो अब भी इसके निकाह करवा चुका हूँ, इसका अब हमसे कोई लेना देना नहीं है। मर चली है वो हमारे लिए। जैसे अरशद अली ने कहा, राफ़े अरीफा बेगम वहीं चुप हो गई। बस इसकी की आवाज़ थी, और एक दबी हुई आवाज़ जिसका दर्द नाकाबिले बयान है। वो माँ थी, कैसे वो अपनी बेटी को भूल सकती थी? तो फिर शाहवेज़ भाभी का क्या क्या हाल है? जवाद ने तंज किया। जैसे जवाद ने कहा, शाहवेज़ ने तीखी निगाह डाली और कहा, कौन सी भाभी? अरे हमारी भाभी जिससे तुमने निकाह करके आए थे। बकवास बंद करो, सुन लिया तुमने। और रही बात इसकी, तो वो मेरा मामला है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो चुप ही हैं, लेकिन सारा का क्या, इसका क्या करोगे? जिससे जैसे फिर जवाद ने कहा। शाहवेज़ ने जवाद का गिरबान पकड़ लिया। अरसल और शहरियार आगे बढ़कर इन्हें एक दूसरे से अलग किया। अल्लाह का वास्ता, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दें, आइंदा से नहीं जाऊंगी शाहवेज़ के कमरे में। वो फरियाद कर रही थी, लेकिन संगदे सबीन इसको मारे जा रही थी। इसके सब्र का पैमाना लरबेज हो चुका था। वो चला रही थी, दर्द से करा रही थी। मासूम चेहरे से गिरते आंसू चीख चीख इस बात की गवाही दे रहे थे कि दर्द की इंतहा हो चुकी थी। कमरे में बेसहारा लेटी, हाथ और बाजू पर काले पट्टे से मारे गए निशान नीले हो चुके थे। जख्म गहरे होने की वजह से वो बर्दाश्त न कर पाई। जब जब काले पट्टे से ज़रब इसके नाजुक कलाइयों जैसे हाथों पर लगती तो वो चला उठती थी। इस कदर दर्द होता कि वो खुद को सहारा ना दे पाती थी। रोशाइल वही ज़मीन पर गुमसुम पड़ी थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिसकी पलकें आंसू से पूरी तरह भीग चुकी थी, इनको हरकत दी। मिर्ज़ा सिकंदर हाथ में दूध और दवाई पकड़े दाखिल हुए, जिसे रोशाइल ने देखा और फ़ौरन उठ खड़ी हुई। बैठो बेटा बैठो, मिर्ज़ा सिकंदर ने बड़े नरम लहजे में कहा। ये लो दूध पिए। उन्होंने गिलास आगे बढ़ाया। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो बेटा? मुझे पता लग गया है, मैं इस पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे साथ इस कदर वहशियाना सलूक किया जाता है। अब तो आदत हो चुकी है। दर्द से बड़ा पुराना वास्ता है। शायद आप इन ज़ख्मों की दर्द इतनी नहीं होती जितनी अपनों के दिए हुए ज़ख्मों की होती है। और ये ज़ख्म ऐसे ज़ख्म हैं जो सारी उम्र नहीं भरेंगे, और ना ही इसकी कोई दुआ मैसर है। मेरी ज़िंदगी में शायद ये सब कुछ लिखा जा चुका था। रोशाइल की आवाज़ में इस कदर दर्द था कि यकीन मानो मिर्ज़ा सिकंदर की आंखें भीग गई। उन्होंने बेख्तियार इसे अपने सीने से लगा लिया। सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र करो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मुझे पूरा यकीन है कि शाहवेज़ तुम्हें ही तस्लीम करेगा और तुम ही इस घर की बहू बनोगी। और रही बात सबीन की, मैंने इसे कह दिया है कि वो आज के बाद तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगी। कितना बड़ापन था इनकी बातों में। आज इतने सालों बाद किसी ने रोशाइल को यूं प्यार किया था, बाप वाला प्यार जिसके लिए वो हमेशा तरसती रही। आज इसका दिल कर रहा था कि वो ऊंचा ऊंचा रोए और अपने दर्द को खुशी में बदले, क्योंकि आज इसे मिर्ज़ा सिकंदर के रूम में अल्लाह ने इसे बाप अता कर दिया। क्या क्या मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? वो दरवाजे की जानिब बढ़े थे। जिसे उन्होंने रोशाइल की बात सुनी, वो पलटे और मीठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। हाँ और हाँ में सर हिलाया। ये देखते ही रोशाइल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो दर्द बड़े जज्बात को खुशी के कुछ लम्हे मैसर हो गए। यूं मानो जैसे इससे सारी ज़िंदगी की दौलत मिल गई हो। बाबा, आपने देखा ना, आपकी गुड़िया दर्द छुपाना सीख गई है, दर्द में खुशी से हंसना सीख गई है। क्या कहा पड़ेगी तो? अरशद अली ने रोशाइल के बालों को नोचते हुए बाहर लेकर आए। अब्बा, आप किस मिट्टी के इंसान हैं जो अपनी औलाद पर शक की जंजीरें बांधी हैं? जैसे रोशाइल ने कहा, उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मासूम से चेहरे पर रसीद किया। क्या कहा? अब ज़ुबान चलेगी तो मेरे सामने? बड़ी बहन जो रंग दिखा कर गई है, तेरे भी वही लक्षण हैं। बता तू किसके साथ भागेगी, ताकि हम अपनी बदनामी की पहले से तैयारियां शुरू कर लें। बस कर दें अब्बा, बस कर दें। अल्लाह का वास्ता है, आपको ज़रा सा भी रहम नहीं आता? अरे कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी औलाद के साथ इस कदर वहशियाना सलूक करता है? बेटियां तो बाप की गुड़िया होती हैं ना। तो फिर हम क्यों नहीं, क्या कसूर है हमारा
یہی کہ ہم آپ کی سگی اولاد نہیں ہیں، کیا یہ ہمارا گناہ ہے؟ ہم آپ کو ابا کہتے ہیں، اتنی بری تھی تو ہمیں مار دیتے، ایسے ہر ہر روز ہمارے کردار پر کیچڑ چھالتے۔ اور رہی بات باجی دانیہ کی تو وہ بھاگی نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے وہ بھاگی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ ایک دم سے روشائل اپنے خواب سے بیدار ہوئی۔ دانیہ، باجی دانیہ کیسی ہوں گی؟ کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ روشائل جلدی سے اٹھی اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے بڑھی۔ ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ جلدی جوس لے کر آؤ، شاویز آتا ہوگا۔ جی آئی، روشائل نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ہاتھ میں جوس کا جگ پکڑے آگے بڑھ رہی تھی، اچانک شاویز اس کے سامنے آ گیا اور جوس کا جگ اس کے کپڑوں پر بری طرح گر گیا۔ روشائل کی سانس وہیں رک گئی۔ ارے کمبخت، سبین نے اپنے ہاتھ کو قابو میں کیا۔ وجہ مرزا سکندر نے منع کیا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ ساری رات سوئی رہو گی تو یہی حال ہوگا نا۔ جاؤ شاویز کو کپڑا دو۔ جی اچھا۔ وہ جلدی سے شاویز کے روم کی جانب بڑھی۔ وہ واش روم میں سنک کی جانب کھڑا تھا۔ یہ لیجیے، میں صاف کر دیتی ہوں، جیسے روشائل نے کہا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ روشائل آ کے بڑی اور کپڑا اس کی ٹی شرٹ پر گرے جوس کے نشان صاف کرنے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتا۔ جب وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے اپنی کوشش میں ناکام تھی، داغ گہرا تھا، ایسے تو نہیں صاف ہونا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی۔ میرے خیال سے یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے شاویز نے کہا۔ روشائل نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ جاؤ میری نیو شرٹ پریس کر دو۔ جی ٹھیک ہے۔ جیسے وہ آگے بڑھنے لگی، پیچھے سے کسی نے روک لیا۔ سنو، وہ پلٹی۔ ماما نے جو کہا اس کو دل پہ مت لینا۔ روشائل نے سر ہلا دیا اور چلی گئی۔ وہ سارے گھر کی صفائی کر چکی تھی، تھکن سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی، ابھی وہ لیٹنے لگی تھی کہ سبین نے آ کر اسے اٹھایا۔ سنو، میں ذرا آج رات کہیں باہر جا رہی ہوں، مرزا صاحب کے ساتھ، اپنی اوقات میں رہنا، تم سمجھ گئی نا؟ انہوں نے اپنے الفاظ میں روشائل کو سمجھایا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ لاؤنج میں کھڑی چکر لگا رہی تھی، بار بار اس کی نظر گاڑی کی جانب بڑھتی۔ کہاں رہ گئے ہیں؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ سونے کی کوشش کرتی لیکن اس سے سویا نہیں جاتا تھا۔ جتنے دن وہ یہاں تھی، ہر روز شاویز کا انتظار کر کے سوتی، جب تک وہ گھر نہ آ جاتے تب تک۔ میں تمہیں ڈھونڈ کے چھوڑوں گا، گھر نہیں آ جاتے تب تک میں تمہیں ڈھونڈ کے چھوڑوں گا۔ کہاں چھپی ہو تم؟ وہ شراب میں دھند گھر میں داخل ہوا۔ جیسے روشائل نے دیکھا، وہ دوڑ کر اسے سہارا دینے کے لیے آگے آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں ملتی، اس لیے مجبوراً مجھے سارا سے منگنی کرنی پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے اوپر لے کے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ۔ روشائل نے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ کچھ نہیں۔ وہ جانے لگی تھی کہ پیچھے سے شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، جیسے شاویز نے کہا۔ اس کے پاؤں وہیں مجمد ہو گئے، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آج بھی نشے میں ہی اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ جی جب نشہ اتر جائے گا وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ شراب کیوں پیتے ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھی تھی اسے بھلانے کے لیے۔ بھولی نہیں بھولتی وہ، یہاں اس دل میں راج کیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے اس کی شادی ہو چکی ہے، نام یاد نہیں، بچپن کی منگ تھی بس، جسے شاویز نے کہا۔ روشائل چپ ہو گئی۔ بھولی نہیں، وہ یہاں دل میں بس چکی ہے۔ شاویز کی ہوئی باتیں ابھی تک روشائل کے دماغ میں ایک نہ بھولنے والی یادوں کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک درد تھا، انتظار کی ایک آس تھی۔ وہ آج بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پاگل مجنوں، گلی گلی میں اپنی محبوب کی خاک چھانتا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے بے پرواہ عاشقوں کی طرح شراب پیتا اور اپنی محبت کو بھلانے کی مجبوراً سارا سے منگنی کی۔ اور مجھ سے نکاح نہیں تھا وہ، اس وقت میری زندگی کی نمائش لگی تھی، سب لوگوں کے سامنے، ایک وہی نمائش جو میرے ابا نے میرے ہونے والے شوہر کے سامنے رکھی، اور ایک شراب میں دھند شاویز سکندر کے نام۔ میں جتنی بھی اس سے نفرت کر لوں، لیکن نہیں، کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس چیز کا کوئی معنی نہیں کبھی بھی وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے یا مجھے ساری زندگی شراب میں دھند ہو کر اپنی بیوی تسلیم کرے گا، لیکن جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ شاید اسے کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ بار بار اپنے دل کو اس بلاوے میں بہکا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاویز سکندر سے نفرت کرتی ہے، صرف نفرت، لیکن یہ دل لگی کی بازی ہے، جان جائے لیکن محبوب چاہے ستم گر میں ماہر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ دل اس سے نفرت کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ جب اس کی طرف دیکھتی تو اس کی طرف ایک کشش محسوس ہوتی۔ کیوں مجھے تکلیف ہوتی جب یہ شراب میں دھند گھر آتا ہے؟ کیوں آخر اس میں
آخر میں اس کی کیا لگتی ہوں؟ صرف نام کی بیوی ہیں۔ اس کی زندگی میں میری اہمیت صرف اتنی ہے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں۔ ایک بندے جس کی رسی شاویز سکندر کے ہاتھ میں ہے، وہ کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے؟ بس کٹ پتلی کی طرح میری زندگی کا کھیل ہے شاویز سکندر۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ نماز فجر کی اذان گونجنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فجر کی نماز ادا کی اور عموماً سارے گھر کی صفائی کی اور بار بار شاویز کے کمرے کو تک رہی تھی۔ اب وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا اور دل پر جبر رکھتے ہوئے شاویز کے کمرے کی جانب بڑی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دروازہ کھلا تھا۔ جیسے وہ اندر بڑی کمرے کی ساری چیزیں بکھری پڑی تھی۔ وہ بیڈ کے سائڈ کونے پر سکڑتے ہوئے لیٹا تھا۔ صاف واضح تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ روشائل نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا آن کر دیا اور کمبل شاویز پر اوڑھ دیا۔ اس کے لمبے لمبے بال شاویز کے چہرے پر پڑے۔ جیسے ہی اس کی زلفوں نے سرگوشی کی، وہ تھوڑا سا ہلا اور کرپٹ بدلی۔ روشائل جلدی سے پیچھے ہٹی اور شاویز کے پیروں طرف دھیان گیا، جس میں ابھی جرابیں پہنی تھی۔ وہ بیڈ کے پیچھے رخ موڑی، اس کے پیروں سے جرابیں اتاری، اس کے قریب پڑے شوز میں رکھی اور آہستہ آہستہ سارے کمرے کو صاف کیا۔ جیسے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، سارے کپڑوں کا تہس نہس تھا، کوئی بھی شرط ترتیب سے نہیں رکھی گئی تھی۔ اس نے شاویز کے آفس جانے کے لیے کپڑے نکالے، سارے پریس کیے۔ وہ گہری نیند میں تھا اور اس کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب بھی روشائل اس کے آس پاس گزرتی سے یوں محسوس ہوتا کہ شاید اس کو کبھی دیکھا ہے، لیکن پھر وہ نہیں سر ہلاتا۔ جوس؟ روشائل نے کہتے ہوئے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ تھینک یو، شاویز نے میٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جاننے لگی تھی، پھر سے روکا اور وہ ہمیشہ کی طرح شاویز کی آواز تھی۔ وہ لڑکھڑایا، شاید نام بھول گیا۔ روشائل: ہاں، آئی سوری۔ اچھا، یاد آیا۔ اچھا روشائل، وہ میں نے تمہیں کہنا تھا کہ تم نے میرے روم کا اسپیشل الماری کا سیٹ اپ کیا، تھینک یو سو مچ۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا کام ہے۔ مطلب آپ سمجھ گئے نہیں؟ اس کے لہجے میں خوفی تھی۔ وہ بنا دیکھے سیڑھیوں پر قدم رکھتے جا رہی تھی کہ یہ تک ہوش نہ رہی کہ آگے سیڑھی ہے۔ لڑکھڑائی اور پاؤں پر دباؤ پڑنے پر زور سے گر آئی۔ جسے شاویز نے روشائل کی آواز سنی، وہ جھٹ سے اوپر گیا۔ روشائل: کتنی دفعہ کہا ہے دھیان سے چلا کرو، لیکن نہیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہو۔ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے، دکھاؤ۔ نہیں، رہنے دیں، وہ پاؤں پر ہلکی سی لگی ہے۔ یہ ہلکی سی ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ نہیں شاویز، میں نے کہا نا میں صحیح ہوں۔ تم ایسے نہیں مانو گے۔ شاویز اٹھا۔ اس نے روشائل کو اپنے ہاتھوں کے سہارے اوپر اٹھایا اور وہ گمسم بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن کیوں بار بار وہ ناکام ہو جاتی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک پریشانی تھی۔ کیا شاویز کو بھی درد ہوئی؟ وہ کیوں ایسا تھا؟ وہ دو شخصیت جینے والا شخص۔ آگے کرو پاؤں۔ روشائل کو اپنا پاؤں آگے کرنا پڑا۔ اس نے کوئی میڈیسن لگائی۔ اس کے ہاتھ بالکل نرم تھے۔ جیسے جیسے وہ لگاتا، وہ اپنی نشیلی آنکھوں سے روشائل کی طرف دیکھتا کہ کہیں اسے درد تو نہیں ہو رہی۔ ارے واہ میڈم صاحبہ، اب ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کرے گی۔ ایک دن باہر کیا گئی، تم نے اپنی اوقات دکھا دی۔ کام تو تمہیں کرنا پڑے گا، چلو اٹھو۔ سابی نے روشائل کا بازو پکڑا اور نیچے دھکیلا۔ یہ جو ناٹک کرتی ہو اپنے پاس رکھو اور کام پر لگو۔ اس سے صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، مجبور تھی کہ یہ کہتے ہوئے سابین باہر نکلی اور فون کال اٹھائی۔ میں نے کیا کہا تھا، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھ لو، شاویز کو اس لڑکی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آگے غریب لوگ گھر میں کم ہیں جو دوسری کو لے آئیں۔ جو بھی کرو، اسے یقین دلاؤ کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں پھر سے کوشش کرتا ہوں، فون میں سے کسی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ آج پارٹی ہے؟ شہریار نے چونکتے ہوئے سارا سے پوچھا۔ جی، میں نے اور شاویز نے سوچا ہے کیوں نہ تم لوگوں کو پارٹی دی جائے ہماری انگیجمنٹ کی، جیسے سارا نے کہا۔ ارسل نے شاویز کی طرف دیکھا جو فون میں مصروف تھا۔ وہ ابھی بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا تھا۔ کیوں بھئی شاویز صاحب، جیسے جواد نے کہا۔ شاویز نے جواد کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اسے ابھی بھی اسی کی فکر تھی۔ ایک گمسم سا سما تھا۔ سب کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر جھوم رہی تھی۔ سب رات کو ہونے والی پارٹی کے لیے بہت پرجوش تھے۔ سہتے مسکراتے ہوئے چہروں میں اس کا چہرہ سونا تھا۔ کسی کو اپنانے کی چاہ میں اس کی دل کی لگی ادھوری تھی۔ وہ کیسے سارا سے منگنی کر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ حل نہیں تھا تو وہ ہار جاتا، لیکن پھر یہ دل میں مچے جذباتوں کا سمندر اسے سکون سے نہ بیٹھنے دیتا۔ وہ اپنی عاشقی کے لیے بے قرار تھا، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔
یہ تو بہت اچھا ہے، سارا ایسے سب انجوائے بھی کر لے گی تم، اور شاویز ٹائم بھی اسپینڈ کر لو گے تھوڑا ساتھ۔ روشائل سب کو کوک سرو کر رہی تھی، شاویز اس کے تمام دوست موجود تھے، جسے سبین نے کہا۔ روشائل نے شاویز کی طرف دیکھا جو مسکرا تو رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ صاف واضح تھی کہ وہ رات کو ہونے والی پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ دے دیا نا؟ جیسے سارا نے روشائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تلخ لہجہ۔ اس نے معصومی سے سر ہلایا۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلی جاؤ، جب ضرورت ہوگی تب بلا لیں گے، سبھی نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا کی طرف دیکھا، جوان شہریار سب مسکراہٹ لیے شاویز کو مجبور کیا، شاہزیب کو بھی مجبور کیا، اسے طنز مسکراہٹ کا حصہ بننا پڑا۔ وہ آگے بڑھنے لگی کہ پیچھے سے ارسل نے اسے روکا۔ بھابی رکیے، جیسے ارسل نے کہا سب کے چہرے چوں گے۔ سارا اور سبین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حیرت سے دیکھا، یوں مانو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ شاویز ارسل کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید ارسل کچھ دیر پہلے روشائل کے ساتھ کی ہوئی بدتمیزی کا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ پلٹی نہیں تھی، اس کے قدم رک گئے تھے۔ بھابی، روشائل آپ بھی آئیں۔ بھابی، یہ کیا کہہ رہے ہو ارسل؟ یہ کوئی بھابی وابی نہیں ہے، سارا نے وضاحت دی۔ خیر، جہاں تک میرا علم ہے شاویز نے باقاعدہ نکاح کیا تھا روشائل کے ساتھ، تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ نشے میں کیا تھا۔ تو کیا نشے میں تھا؟ لیکن نکاح کی ساری رسم ادا کی تھی، اور اسے پتہ بھی تھا۔ کیوں شاویز؟ جیسے ارسل نے کہا۔ شاویز چپ تھا۔ وہ کیا کہتا، کیا بتاتا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں؟ نہیں، وہ سب کے سامنے مجھے کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اس کے سامنے نشے میں دھند ہوں، بیوی ہوں جو نشے کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ قسمت نے اس کے ساتھ انوکھا کھیل کھیل رہا تھا، اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا تھا، اور کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ارسل، اس کی اوقات ہمارے گھر میں نوکرانی جتنی ہے، ٹھیک ہے، صرف نوکر، اور یہ شاویز کی بیوی نہیں ہے۔ اور جس نکاح کی تم بات کر رہے ہو تو وہ شاویز اسے ذات کر دے گا بہت جلد، بس انکل کے باہر جانے کی دیر ہے۔ سب کے سامنے اس کا تماشا بنایا جا رہا تھا، سب ہنس رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ کیا کہتا؟ میں اس کی کیا لگتی ہوں جو وہ سب کے سامنے میری وضاحتیں دے؟ ارسل نے روشائل کا درد سمجھا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ کس حال میں ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاویز کیوں سب کے سامنے اکیلا تنہا چھوڑ دیتا تھا۔ معصوم سا چہرہ جس پر شرم و حیا کا پردہ تھا، تربیت واضح تھی، تو پھر کیسے شاویز نے اس بیچارے کی زندگی برباد کر دی، اس کی عزت پر بد چلن کا داغ لگا دیا۔ سبین، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ منگنی کی پارٹی کیوں؟ مرزا سکندر نے غصے سے فون میں بات کرتے ہوئے کہا، اور وہ اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ کیا مطلب مرزا صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا اور شاویز کی منگنی ہو چکی ہے، اس کی پارٹی ہے، اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ بات ہے کیا ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ سبین صاحبہ، آپ کے بیٹے نے آگے ایک معصوم کے ساتھ نکاح کیا ہے، پھر وہ کسی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ بس مرزا صاحب، بس کر دیں، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے؟ سبین نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ نکاح حد ہو گئی ہے۔ سب تیاریاں زور و شور پر تھی۔ سارا اور سبین نے اعلیٰ ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اتنے مہنگے کپڑے پہننے کے باوجود سارا میں وہ کشش نہیں تھی جو روشائل کے سادہ سے لباس میں تھی۔ روشائل نے بلیک پٹیالہ اور بلیک کی قمیض پہنی تھی، کمر پر آتے لمبے بال اور پرکشش چہرہ، کوئی دیکھتا تو ایک منٹ نظر نہ ہٹا پاتا۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ شاویز کے دوستوں کو سرو کر رہی تھی۔ عجیب سی بات تھی، شاویز تب سے مسلسل روشائل کو ہی دیکھ رہا تھا جو ارسل کو کوک پکڑا رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ جیسے ارسل نے کہا، وہ رکی۔ میں ٹھیک۔ روشائل کی زبان لڑکھڑائی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ درد سہنے کے عادی ہوتے ہیں، اکثر جھوٹ پہ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ جیسے ارسل نے کہا۔ روشائل نے اس کی طرف دیکھا، شاویز مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارا اسے سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن بار بار کیوں وہ اس کی طرف مائل ہوتا؟ شاید اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ارسل کا روشائل سے بات کرنا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب جو ہو چکا ہے اسے اپنی بد نصیبی سمجھ کر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ جھوٹ۔ ارسل نے روشائل کے بازو دیکھے، اس نے جلدی سے اسے ڈھانپا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ روشائل، وہ جانے لگی تھی کہ شاویز نے اسے آواز لگائی۔ سارا نے سبین کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ، میں نے تم سے بات کرنی ہے مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں۔ وہ دونوں ایک روم میں گئے۔ وہ داخل ہوئی تھی کہ شاویز نے جلدی سے پوچھا، وہ تمہیں ارسل کیا کہہ رہا تھا؟ کیا مطلب واضح ہے روشائل، کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے لہجے میں جلن تھی۔ کچھ بھی کہہ رہا ہو آپ کچھ بھی کہہ رہا ہو، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ہے، غرض ہے مجھے۔
तभी तो पूछ रहा हूँ। उसने रोशाइल को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी पूरी कुव्वत से दीवार के साथ लगाया। किस हक से? क्योंकि तुम मेरी। जैसे शावेज ने कहा वो रुक गया। बस शावेज सिकंदर, यही गर्ज थी। अरे जब तुम में हिम्मत नहीं फिर क्यों गुस्सा करते हो? रोशाइल ने कहा और वहाँ से चली गई। बाहर का माहौल गर्म था, सारा को इस कदर गुस्सा था, इसका दिल कर रहा था कि वो रोशाइल को मार दे। बताओ क्या समझती हो खुद को? सारा ने पूरा कोक का मग इसके कपड़ों पर फेंक दिया। हूर पड़ी हो क्या? हूर पड़ी हो क्या? यही कि शावेज के सामने जाओगी और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा? यही तुम्हारी सोच है ना? शावेज सिर्फ मेरा है और मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगी, समझी? अब्बू, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आपने तो कहा था कि तुम्हारा शादी का जोड़ा लाना है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं अब्बू? सच सच बताइए ना, हम कहाँ आए हैं? दानिया ने चुकते हुए कहा। वो एक सुनसान सी जगह पर थी। घर से वो बिना बताए अपने अब्बा अरशद अहमद के साथ निकली थी। ये क्या कर रहे हैं अब्बा? दानिया घबराई। इसके हवास बौखलाए जब अरशद साहब ने इसके हाथों और बाजू का मजबूत रस्सी की जाल में धंस दिया। इसे अभी तक मालूम नहीं हो रहा था कि इसके साथ क्या होने वाला है। अब्बा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताएं तो सही, आप क्या कर रहे हैं? चुप कर। अरशद अहमद ने इसके नाजुक चेहरे पर थप्पड़ सीध किया। मारने लगा हूँ तुझे जैसी तू जैसी बचलन को सुन लिया तुमने? मार दूंगा आज तुझे। नहीं नहीं अब्बा, खुदा के लिए ऐसा मत करे। इसकी आंखों में आंसू का दरिया बहने लगा। आवाज़ हलक में अटक रही थी और हाथ जोड़े अपने बाप के सामने फरियाद कर रही थी। अब्बा, खुदा के लिए मेरा कसूर क्या है जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? अब्बा, कुछ तो बोलिए। मुझे पता है हम आपकी सगी औलाद नहीं, लेकिन सगी औलाद की तरह चाहा आपको। वो बेहिस सख्त दिल इंसान इसकी एक बात नहीं सुन रहा था। वो मिन्नतें फरियाद सब कुछ तो कर रही थी। पसंद की शादी करेगी तो इसकी आंखों में वहशीपन था, खून सवार था। नहीं नहीं नहीं, अब मैंने तो इसे मना कर दिया। जब आपने इजाज़त नहीं दी। देख लें अब्बा, खुदा के लिए एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दें। क्या मिलेगा आपको ऐसा करके? वो घर से प्यार से सर पर हाथ रखना, वो सब दिखावा था क्या अब्बा? वो प्यार से वो अपनाई से मुझे मारने के लिए की थी अब्बा। खुदा की कसम में अगर एक दफ़ा आप मुझे कहते ना, दानिया तुझे मरना है, मैं खुशी खुशी चल देती अब्बा, क्योंकि मुझे आपका प्यार चाहिए था, वो बाप वाला जिसके लिए हम सारी बहनें तरसी हैं। बाप एक बेटी का अपने सौतेले बाप ही को क्यों? अगर किसी को भी कहे तो किसी का दिल करता वो अपनी औलाद के साथ ऐसा करे। इसने सारा पेट्रोल इसके ऊपर फेंक दिया। अब वो एक आखिरी दफ़ा इससे कुछ मांग रही है। खुदा के लिए मेरी दूसरी बहनों के साथ इस तरह का जुल्म मत करिएगा। वो अपनी आंखों पर और कानों पर पट्टी बांध लें, क्योंकि जब तक मेरा सारा जिस्म जलकर राख ना हो जाए, मैं तब तक आपसे माफ़ी मांगती रहूँगी। शायद आप मुझे माफ़ कर दे, खुदा की कसम। जब दानी ने कहा, अर्श काम किया होगा इतना सख्त बाप, जो आप अपने हाथों से अपनी औलाद को जला दिया। वो जलती रही। इसकी आंखों में कुछ अपने थे, कुछ ख्वाब, कुछ अपनों की चाहत, सब कुछ इसी आग में जल गया और वो सौतेला शैतान सामने खड़ा तमाशा देखता रहा। दानी अब इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। गैरत के नाम पर एक लड़की कुर्बान। वो घर से भागी नहीं थी। इसके सौतेले बाप ने सब किया। लोगों के सामने कह दिया कि वो भाग गई। माँ सब घर वाले रोते रहे, लेकिन रोशाइल इस बात से मुत्तफिक नहीं थी, क्योंकि इसे लगता था कि इसकी नाजी भाग नहीं सकती, क्योंकि इसने खुद इस लड़के को मना किया था। लेकिन क्या करती? कैसे वो घर वालों को, सब रिश्तेदारों को यकीन दिलाती? आरफा बेगम, अरशद अली ने इस कदर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि सब हड़बड़ा कर उठ बैठे। जी आप ठीक तो हैं? आरफा जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई। अरशद साहब के चेहरे पर पसीना आया था। आसर वाज़ा था कि उन्होंने कोई बड़ा ख्वाब देखा था। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है कभी कभी, ना तो कभी इंसान को पकड़ होती है। ज़ख्म तो बहुत गहरे थे, लेकिन मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। अपने तो बहुत थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। कैसे वो छुपा लेती है अपने ज़ख्मों को, इस दर्द को जो वो हर रोज़ बर्दाश्त करती थी। हर रोज़ इसकी इज़्ज़त का ताना दिया जाता था। इसके दामन पर जो दाग लग चुका था अब कभी मिटने वाला नहीं था। इसकी सही सही हल्की सिर्फ एक शख्स कर सकता था।
اس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، اور وہ کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھلا نہیں سکتی تھی، اور وہ شاویز سکندر تھا، جس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس کے دامن پر بدچلنی اور بد کردار کا کیچڑ اچھالا تھا، وہ جو صرف اس کی سچائی بیان کر کے ہی دور ہو سکتا تھا۔ شاور اپنی مکمل صحیح پر تھا، پانی کے قطرے شاور کے نیچے کھڑا تھا، پانی کے قطرے اس کے زخموں کو اور گہرا کر رہے تھے۔ وہ چلا رہی تھی وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی، پانی کے قطرے اس کے زخموں کو اور گہرا کر رہے تھے۔ وہ چلا رہی تھی اپنے درد کو بھلانے کے لیے، وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو خود کو نوچ رہی تھی۔ کیوں کیا شاویز، کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں تم میری زندگی میں آئے؟ نہ آتے تو تم پیار کے لائق ہو، نہ تم نفرت کے قابل۔ تم کیا کر رہی ہو؟ جسے سارا اندر داخل ہوئی اور وہ روشائل کو دیکھتے ہی بگڑ گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، گونگی ہو کیا؟ وہ اس کے قریب گئی۔ شاویز کی شرٹ ہے نا؟ تم شاویز کی شرٹ پریس کر رہی ہو؟ وہ چپ بنا کچھ کہے پریس کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شاویز کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ سارا نے روشائل کے بازو سے پکڑ کے اسے دھکیلا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے دوبارہ، سن لیا تم نے؟ روشائل نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر دھکیلا۔ تمہارا کیا حق ہے شاویز پر؟ بتاؤ کیا لگتی ہو تم؟ اس کی صرف منگنی ہی ہوئی ہے نا، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ میں اس کی بیوی ہوں، تم سے پہلے اس پر میرا حق ہے، اس پر اور اس کی چیزوں پر۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ جیسے روشائل نے کہا، سارا نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر استری کے نیچے رکھ دیا۔ اب بتاؤ، وہ چلانے لگی۔ ابھی 1-2 سیکنڈ تھے کہ شاویز آ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو سارا؟ جسے سارا نے شاویز کو دیکھا جلدی سے پیچھے ہٹی۔ شاویز تم یہ نوکر؟ وہ کچھ کہتی شاویز نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ بیوی ہے وہ میری، میرے نکاح میں ہے وہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ جیسے روشائل نے سنا وہ ایک دم سے ٹھہر گئی۔ تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر مجھے تھپڑ مارا؟ جس سے سارا نے کہا۔ شاویز اس قدر زور سے بولا کہ کمرے میں موجود ہر چیز یوں مانو کانپ گئی ہو۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، سن لیا تم نے؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے میری، بیوی، سن لیا تم نے؟ اب اگر آئندہ تم نے اسے ہاتھ لگانے یا چھونے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاویز کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ شاویز نے روشائل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ سارا روتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ بیٹھو یہاں۔ شاویز جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ کیا واقعی شاویز نے جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ کیا میری کوئی اہمیت اس کی زندگی میں؟ کیا واقعی وہ مجھے تسلیم کر چکا تھا؟ یہاں پہ نشے میں دھند کوئی کھیل تھا، لیکن وہ نشے میں نہیں تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے پٹی کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ہو رہا۔ وہ بس شاویز کی طرف دیکھتے جا رہی تھی، اسے بھی اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم ریسٹ کرو۔ شاویز کے کہنے پر اٹھی اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ سنو روشائل، آخر اس نے اسے روک لیا تھا۔ وہ پلٹی اور اس کی طرف دیکھا۔ تو تم میرے روم میں لیٹ جاؤ، جیسے شاویز نے کہا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، پاؤں وہی مجمد ہو گئے۔ نہیں میں اپنے روم میں ہی ٹھیک ہوں۔ نہیں اب ریسٹ کر کے بلا شبہ بعد میں چلی جانا۔ اس نے روشائل کو اپنے کمرے میں ہی رہنے دیا۔ کب کرے گا بتائیں مجھے، کب کرے گا شادی مجھ سے؟ بس کر دیں خالہ، بس کر دیں۔ آپ اپنے یہ جھوٹے وعدے اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، سب جان گئی ہوں میں آپ کا بیٹا سے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہے، وہ اسے طلاق نہیں دے گا، اور آج اس 2 ٹکے نوکرانی کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ کون ہوتا ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا؟ کام ڈاؤن مائی پرنسس، آئی نو تمہارا غصہ جائز ہے، بس مجھ پر یقین ہے نا تمہیں؟ بولو جیسے بس نے کہا۔ سارا نے سر ہلایا۔ تو پھر تم دیکھنا اس ہفتے کے اندر اس لڑکی کا ایسا حشر کروں گی کہ شاویز اسے خود طلاق دے گا۔ بس آج رات کو تم تماشا دیکھنا پر خالہ، بس بیٹا اس تھپڑ کا اس نوکرانی کو بہت بڑا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ اب اس کو نکالنا میری ضد بن چکا ہے۔ جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا، جس چیز سے شاویز کو بچا کر رکھتی تھی وہی ہوا۔ اب تم دیکھتی جاؤ۔ شاویز ایک لمحے کو سوچو، روشائل کا قصور کیا ہے؟ اس نے تمہارا اور تمہاری فیملی کا کیا بگاڑا جو تم لوگ اس کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے ہو؟ اس بیچاری نے تو خود تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو؟ یاد کرو وہ دن جب تم نشے میں دھند اس کی زندگی برباد کر کے آئے تھے۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ صرف تمہاری۔ شاویز، روشائل نہ صرف ایک اچھی لڑکی ہے بلکہ ایک بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ میں کہتا ہوں تم اسے تسلیم کر لو اور اسے معافی مانگو۔
तुम ने इसके साथ बहुत बुरा किया है। अरसल इसे शावेज़ को समझाते हुए कहा। शावेज़ को फिर से वो सारा वाक़या याद आया। वाकई इसमें रोशाल की कोई कसूर नहीं था। मैं ही इसकी ज़िंदगी में बर्बाद करके रख दी और अब इसे और जलील कर रहा हूँ। मैं आज रात ही मम्मा से बात करूँगा। वो शावेज़ कमरे में लेटी थी कि साथ पड़े पीटीसीएल पर कॉल आई। रोशाइल ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शावेज़। जैसे शावेज़ ने कहा रोशाइल का दिल धड़का। जी कहिए। वो मैं पूछना चाहता था। वो रुका। क्या पूछना है? वो मैंने पूछना था कि टाइम क्या हुआ है? शावेज़ ने कहा। रोशाइल चूक के देखा। आपने टाइम पूछने के लिए कॉल की है? इसने कहते हुए ज़ोर से कहका लगाया। आज वो बहुत अरसे बाद मुस्कुराई थी। बहुत अरसे बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का पहरा छाया था। तो मेरा मजाक बना रही हो? नहीं तो अच्छा, असल बात बताएं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है? चलो ठीक है। शावेज़ ने कहते हुए फ़ोन बंद किया। पागल कहीं का, ऐसे भी कोई कहता है क्या? आठ आठ निकल सभी उठ उठ निकल। सभी रोशाइल को घसीटते हुए नीचे लेकर आ रही थी। आंटी आंटी ये क्या कर रही हैं आप? अभी तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने क्या किया है? जैसे रोशाइल ने कहा। सभी ने रोशाइल का जख्मी हाथ को इस कदर ज़ोर से दबाया कि पूरे घर में इसकी चीखें बुलंद हुई ना। दर्द ऐसे ही मेरी भांजी को हुई थी। बड़ी तेज़ तेरी ज़ुबान चलने लगी है। क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहना। वो रोशाइल लड़खड़ाई तो सभी ने इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ सीध किया। क्या वो कर रही हो? अभी वो दूसरा हाथ उठाने लगी थी कि इससे कॉल आई। सभी ने कॉल उठाई। साहब शावेज़ आ रहे हैं। जैसे सभी ने सुना, इसने साथ पड़े गुलदान से अपने सर को ज़ख्मी कर लिया। वो नीचे गिरी थी कि शावेज़ हाथों में गुलाब के फूल लिए। वो शायद रोशाइल के लिए लिया हो। वो नीचे ज़मीन में गिर गए। वो इसने बुलंद आवाज़ में कहा। मामा मामा ये कैसे हुआ? इसने सबीन को अपने सीने से लगा लिया। बेटा रोशाइल ने मुझे मारा। मैंने सिर्फ काम का पूछा था कि मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। जैसे सभी ने कहा। शावेज़ को बुला रह गया। नहीं शावेज़। रोशाइल नहीं नहीं, मैं सर हिला रही थी। नहीं शावेज़ नहीं। वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके खिलाफ जो झूठ का जाल बिछाया गया था रोशाइल इसमें बुरी तरह फंस चुकी थी। वो सच्ची थी, लेकिन सबीन ने इसे झूठ की जंजीरों में कैद कर डाला था। सबीन के माथे पर काफ़ी गहरा जख्म आए थे। इस सिलसिले में इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। प्लीज़ शावेज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। रोशाइल ने शावेज़ को कहा, जो हॉस्पिटल के बाहर ग्राउंड में था। सबीन अब बिल्कुल ठीक थी। इसे सोने वाले इंजेक्शन लगाया गया था ताकि वो आराम कर सके। बस अब एक और लफ्ज़ नहीं। क्या कहना चाहती हो? जो तुमने करना था वो तुम कर चुकी हो। नहीं शावेज़, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा यकीन करो, मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? कौन था? घर बताओ। तुम्हारे अलावा घर में कोई नहीं था। तुम्हें क्या लगा तुम जो भी करोगी मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं पागल था जो ये सोच बैठा था तुम एक अच्छी लड़की बन सकी और ना ही एक अच्छी बीवी बन सकती हो। मैंने क्यों सोच लिया कि तुम सब लड़कियों से मुख्तलिफ हो? लेकिन नहीं, तुम किस कदर जालिम हो। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी मामा ने तुम्हारा? वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी थी ना। तो फिर क्यों किया ऐसा? जवाब दो। बोलो। क्या कुछ बोलोगी क्या? क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। वो मुसलसल बोलता जा रहा था, लेकिन वो खामोश थी। चाहे वो लाख कोशिश कर लेती, लेकिन वो शावेज़ की नज़रों में झूठी साबित हो चुकी थी। सच खामोश हो गया था। क्या कहती? वो अब कुछ कहने वाला रह नहीं गया था। शावेज़ ने अपनी माँ का झूठा जख्म को तो देख लिया, लेकिन एक दफ़ा भी इसके जले हुए हाथ को नहीं देखा, जिसको इतनी ज़ोर से सभी ने दबाया था कि जख्मों में खून रसना शुरू हो गया था। शावेज़ खाला कैसी है? सारा बड़बड़ाती हुई हॉस्पिटल में आई। ठीक है, वो अभी सो रही है। इसके बाद इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मैंने तो ये खबर सुनकर दंग रह गई। मतलब कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? कितनी बदतमीज़ मकान निकली जिस घर में रहती हो इसी पर वार करती है। सारा ने शावेज़ के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और साथ तंज किया। मुस्कुराहट से रोशाइल को देख रही थी। मैं तो कहती हूँ उसे घर से दिखे देकर निकालना चाहिए। अगर आज ये कर रही है तो पता नहीं कल को क्या करेगी। शावेज़ कुछ नहीं बोल रहा था। तुम्हें हमसे बढ़कर ये दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कौन जान से प्यारा ना होगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके तलाक दो, इसे आज़ाद करो। और इस आवारा को। ये सुनते ही रोशाइल वहाँ से चलेगी। बदचलन, बदकिरदार, बदतमीज़ आवारा, और क्या क्या नहीं इसे कहा गया था। इसकी ज़िंदगी में जो हो चुका था वो काबिल बर्दाश्त था, लेकिन वो इस इम्तिहान को खामोशी से और गुमसुम सह लेती भी। ज़बान पर शिकवे का उफ तक नहीं किया। अकेली सड़क पर चल रही थी ज़िंदगी इसके लिए। अब दर्द के सिवा कुछ नहीं थी। इसकी चीखें शावेज़ को क्यों नहीं सुनाई देती थी? वो अब ज़िंदगी से रुसवा हो चुकी थी। अब इसके दिल में कोई चाहत नहीं थी, कोई ख्वाब नहीं था। खुदा का वास्ता है, अब
मैं इसे नहीं जानती, ये कौन है और ये ऐसा क्यों कह रहा है, मुझे नहीं पता। अपने घर वालों से, अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब थी। जब जब वो ज़िंदगी की इम्तहान से थक जाती तो वो अपने माँ के सीने से लगकर रोती। इससे इसके गम का बोझ हल्का हो जाता। लेकिन आज इसे अपने सीने से लगाने वाला कोई नहीं था। जितनी जल्दी हो सके तलाक दो, इस आवारा को आज़ाद करो। इससे सारा के अल्फाज किसी खंजर की माने इसके दिल में चुभे थे, लेकिन इसे उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी गम का ये बादल इसकी ज़िंदगी से रवाना हो जाएगा और उसके दिल में चाहत का समा पैदा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। इसकी सिसकियां सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। वो मुसलसल यही कह रही थी। शावेज़ और सारा सबीन को लेकर घर चले गए थे। शावेज़ ने मिर्ज़ा सिकंदर को इस हादसे के बारे में नहीं बताया था ताकि वो परेशान ना हो जाए, लेकिन इसने एक दफ़ा बीर और शाइल के बारे में नहीं सोचा था। अरे वाह खाला, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। अब देखते हैं क्या आपका ये मंसूबा अपने अंजाम तक पहुंचता है या नहीं। अरे कैसे नहीं पहुंचेगा सारा डियर, तुम्हारी खाला इतना मजबूत जाल बछाया है कि इसकी धुनें इस कदर मजबूत हैं कि शेर भी जाल से बाहर नहीं निकल सकता। सभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा खाला, शावेज इसे तलाक तो दे देगा ना। अरे कैसे नहीं देगा, तुम देखना अब होता क्या है। शावेज इस 2 टके की लड़की को खुद अपने हाथों से बाहर निकालेगा। अच्छा खाला, ये महारानी है, कहा रोशाइल। सारा ने बुलंद आवाज़ में इसे पुकारा, ये क्यों नहीं रही, या क्यों नहीं रही। सारा को गुस्सा आया, गूंगी हो, सुनाई नहीं देता क्या। सारा ने तक लहजे में कहा, वो मैं क्या, मैं लगा रखा है, बोला नहीं आता क्या। इसने रोशाइल को बाजू से पकड़कर धकेला और नाजुक अली को रोना आ गया। रोना तो अब स्टार्ट होगा तुम्हारा जब शावेज तुम्हें इस घर से तलाक के कागजात थमा के भेजेगा। बड़ी ज़बान चलती थी ना इसकी कि मैं इसकी बीवी हूँ, इस पर और इसकी चीज़ों पर मेरा हक है। अब देखना ऐसे तुम्हें घर से निकालेंगे कि सारी ज़िंदगी की दर दर ठोकरें खाओगी। चलो अब दफ़ा हो, जैसे धक्का दिया किसी कमरे से बाहर निकाला। क्या वाकई शावेज मुझे तलाक देने लगा है। मेरा कसूर क्या है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मेरी ही। अल्लाह, मैं क्या करूँ। इस मतलब परस्त दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो मुझे पनाह देगा ना। पूरी ज़िंदगी ये बाप के प्यार को तरसती रही और माँ से अलग कर दिया। अब एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी जो नफरत के काबिल भी नहीं है। अकेले एक कोने में तनहा बैठी अपनी बद नसीबों को कोस रही थी। सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आज इसे कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई भी इसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। सभी ने फ़ोन पर मुसलसल घंटी बज रही थी, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही थी। मामा आपका फ़ोन, जैसे शावेज़ ने कहा। इसने स्क्रीन पर जवाद का नंबर देखा। जवाद मामा को कॉल क्यों कर रहा है। वो एकदम हैरान रह गया। इसने जल्दी से फ़ोन उठाया। अभी वो कुछ कहता कि जवाद ने पहले पहल की, आंटी एक बड़ी बुरी खबर है, आपको पता है शावेज जिस लड़की को ढूंढ रहा है, लगता है वो इसको ढूंढ लेगा। जिसे शावेज ने सुना, 1 मिनट के लिए वो धमसा रह गया। इसे यकीन ही हो रहा था कि जवाद और मामा को कैसे पता चला। आंटी मुझे पता चला है, जो बंदे ने इसे छोड़े थे उन्होंने घर ढूंढ लिया है। कभी भी वो शावेज को कॉल कर सकते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके कैसे भी करके शावेज का फ़ोन इससे ले लें, कोई भी बहाना बना दें। आंटी मैंने बहुत कोशिश की थी इसे यकीन दिलाने की कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो मानता ही नहीं। यही कहता है कि वो इसे मिल जाएगी। जवाद की बातें किसी खंजर से कम नहीं थी। वो लड़खड़ाया, ऐसे लग रहा है कि वो अपने होश खो गया हो। जवाद और इसकी माँ, सगी माँ ने इसकी मोहब्बत से मिलने के लिए क्यों रोका, वो क्यों ऐसा कर रही थी, क्यों मुझे इससे मिलने नहीं दिया। बहुत से सवाल इसके ज़हन में पैदा हो रहे थे, लेकिन इससे पहले कि इसने अपनी मोहब्बत से मिलना था, इसे एक नज़र देखना था जो वो देखने के लिए तरस गया था। इसकी मोहब्बत जिसके लिए वो 3 साल ख्वार हुआ था, आज इसे इसकी मंजिल मिल ही गई थी। वो पागल आशिकों की तरह नीचे आ रहा था। जैसे वो सीढ़ियाँ उतर आता है, सामने से रोशाइल आ रही थी, लेकिन इसे कोई खबर नहीं थी। बस वो इसे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि मोहब्बत तो दिल के करीब और आसपास होती है, मगर इसने कभी अपने करीब देखा ही नहीं था। हेलो साहब, आपके लिए खुशखबरी है, इसका पता चल गया। आप जल्दी से हमारे अड्डे पर आ जाएं। हाँ हाँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। इश्क वो बला है जिसको छुआ है इसने वो जला है। दिल से होता शुरू पर कमबख्त सर पर चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी ज़माने से लड़ा है। इतना बदनाम फिर भी हर ज़बान पे अड़ा है। आज इसे अपनी बचपन की मोहब्बत से मिलना था, जिसे वो बचपन से मोहब्बत करता था। इसे याद था वो हर एक पल जो इसने इसके साथ बिताया था। आज इसे वो मारा मारा पागलों की तरह ढूंढ रहा था। ये दिल का राज था। जब सांस लेता तो हर सांस पर इसका अक्स आंखों में आ जाता। इसकी वो बालों की लंबी पोनी, सब कुछ तो याद था। इसका उल्टा नाम गुड़िया, जो इसके अक्सर
अक्सर कहता था, क्योंकि इसका असली नाम इसे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन क्यों दिल ने इतना फासले फासले डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। इसकी फूली सांसें फूली हुई थी, इसका दिल जोर जोर धड़क रहा था। कहाँ है ड्रेस? जैसे शावेज ने कहा, इस आदमी ने कागज़ की चिट्ठी पकड़ा दी। ये लें साहब, आपकी इमानत, बहुत मुश्किल से ढूंढा है आपको। नाम तो याद नहीं था, बस इतना याद था कि इसका बाप कोई सोने का कारोबार करता था, लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला वो मर गया, इसलिए बहुत मुश्किल हुई इसके अहले खाना को ढूंढते हुए। जैसे शावेज ने सुना, वो धक से रह गया। क्या? इसे कुछ कुछ याद आ रहा था, लेकिन माजी की तस्वीरें बहुत धुंधली हो चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो तुम्हारे पैसे। शावेज ने इस आदमी को पैसे थमा दिए और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। वो अपने कदम तेज़ी से उठा रहा था, इसकी आंखें तरस गई थीं, जिससे इसने इसने इस महल में कदम रखकर से यूं महसूस हुआ वो यहाँ पहले आ चुका है, मगर से ठीक से याद नहीं आ रहा। कदम तेज़ी से बढ़ते गए और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। जैसे ही शावेज ने वो घर देखा, वो वहीं रुक गया, से पाँव वहीं मजबूत हो गए, यूं मानो वो वहीं सुन हो गया, बेजान सा, जिसमें अब कोई हरकत नहीं थी। इसकी आंखें एक जगह ठहर गई। ये तो वही घर है, यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये निकाह नहीं हो सकता। शावेज को सारी बातें रफ्ता रफ्ता याद आ रही थी। अब्बू, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू गिरने लगे, लेकिन इसे जाना, इसे देखना था, अपनी मोहब्बत को। शावेज ने दरवाजे पर दस्तक दी, इसके हाथ कांप रहे थे। कैसे वो सामने करेगा इनके घर वालों को? आखिर में इनकी बेटी के साथ बुरा किया था। आई घर से आवाज़ है। जैसे राफिया बेगम ने दरवाज़ा खोला, वो वही धमक रहेगी, इसके लबों से बेख्तियार निकला, तुम? मैं, मेरी बेटी कैसी है बेटा? वो ठीक तो है ना? खुदा के लिए अब इसके साथ कोई बुरा ना करना, मेरी बेटी बहुत भोली है। आगे तुमने इसके साथ जो कर दिया, इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। आरफा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। आंटी आंटी, क्या आप मिर्जा सिकंदर को जानती हैं? जैसे शावेज ने कहा। अराफे चूक गई, ऐसे लगा वो सोच में डूब गई हो। इस बात से महसूस हो रहा था कि वो मिर्जा सिकंदर को जानती थी। तुम कौन हो और तुम क्यों इनके बारे में पूछ रहे हो? मैं इनका बेटा हूँ, शावेज सिकंदर। जैसे शावेज ने कहा, आराफे की आंखें खुली खुली की रह गईं, वो वही रुक गई। क्या तुम मिर्जा सिकंदर के बेटे हो? ओ हाँ, मैं इन्हीं का बेटा हूँ। नहीं नहीं, तुम इनके बेटे नहीं हो सकते। वो इतना इतना रहमदिल, तुम खुश सिफ्त इंसान थे, तुम इनके बेटे नहीं हो सकते। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं राफिया वहीद अहमद की बीवी, यकीन करो। जैसे राफे ने कहा, शावेज से लड़खड़ाए, इसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। आंटी, मुझे बताएं, ऐसा क्या हुआ था कि बाबा और अंकल वहीद ने एक दूसरे से ताल्लुकात तोड़ दिए और हमारा? जिसे शावेज ने कहा, वहीं रुक गया। इसके बारे में पूछ रहे हो ना? वो वही है जिसको तुमने शराब के नशे में धुंध निकाह करके लेकर गए थे। वो वही मेरी बदनसीब बेटी है, जिसकी बचपन में तुम्हारे साथ मंगनी थी, गुड़िया। वही गुड़िया जिसके बगैर तुम एक दिन ही रह सकते थे। रोशाइल नाम है गुड़िया का। आसमान फट गया। शावेज खुद को काबू नहीं रख पा रहा था। क्या गुड़िया रोशाइल है? इसकी आवाज़ में सिसकियां पैदा हुई थी। दूर हो मुझसे, ना तुम एक अच्छी लड़की हो, ना ही एक अच्छी बीवी बन सकी। ये निकाह नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, वो गुड़िया नहीं हो सकती। आंटी, शादी में तो अंकल वही नहीं थे, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी वफ़ात के बाद मेरी अरशद अली से शादी होगी और शाइल का सौतेला बाप है। आंटी प्लीज़, खुदा के लिए मुझे शुरू से बात बताएं, ऐसा क्या हुआ था? मिर्ज़ा सिकंदर और वहीद अहमद बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, और ये दोस्ती इतनी मजबूत थी कि शादी के बाद वो इकट्ठे होते थे। तुम्हारे हमारे अहले खाना से काफ़ी गहरा रिश्ता हो चुका था, बिजनेस पार्टनर थे। सोने के वहीद साहब और मिर्ज़ा भाई, दोनों भाई घर में खुशियाँ थी। दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करने के लिए तुम्हारे और रोशाल की मंगनी कर दी। तब तुम 10 साल के थे और रोशाल 8 साल की। सब घर वाले खुश थे, सिवाय तुम्हारी माँ सबीन के, जो शुरू से ही हमें पसंद नहीं करती थी। बस इसी नफरत के तले इसने मिर्ज़ा भाई को पता नहीं क्या ऐसा कहा कि मिर्ज़ा साहब ने सारे रिश्ते नाते एक सेकंड में तोड़ दिए। तुम्हारे और रोशाइल का एक दूसरे से काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी, जो सब कुछ टूट गया। और इसी गम में वही साहब को हार्ट अटैक हुआ और उस दुनिया से चल बसे। इसके बाद मेरा निकाह अरशद अहमद से हो गया। हम तुमको कराची छोड़कर इस्लामाबाद आ गए। मुझे बस इतना पता है कि तुम लोग भी कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखा था। बस देखो, ना चाहते हुए भी कैसे किस्मत ने तुम्हें हमसे मिला दिया बेटा। ये सब कुछ सभी ने किया, रिश्तों में दरारें पैदा कर दी। जैसे जैसे राफ़िया बेगम हकीकत बताती जा रही थी, शावेज को अपनी माँ का असली चेहरा पता चलता जा रहा था। इसलिए मामा ने जवाद को मुझे ये बताने के लिए कहा, क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। जवाद और मामा किस कदर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मामा से करेगी। वो बेहोश हवास चल रहा था। इसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जैसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो मेरे करीब, मेरी बीवी, और मैं इसे पहचान नहीं सका। मामा ने ऐसा क्यों किया? अंकल वहीद और बाबा के दरमियान दुश्मनी डालकर ये निकाह नहीं हो सकता। इसे अपने अल्फाज बार बार याद आ रहे थे, जैसे इसने अपनी ही मोहब्बत का
सबका मजाक बना दिया, सारी दुनिया के सामने से इसके दामन पर एक धब्बा लगा दिया जो शायद अब कभी नहीं मिटने वाला था। आ ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। इसे अपने आप से नफरत हो रही थी। इसने क्या कर दिया? वो बार बार अपने हाथों को खुद को मारता। इसकी गहरी नशीली आंखों में आंसू का दरिया बह रहा था। इसने एक मासूम सी ज़िंदगी, इसकी ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी के साथ सबके सामने नशे में धुंध होकर इसकी इज्जत को सबके सामने नीलाम कर दिया। क्या कफारा है इस गलती का? क्या कफारा अदा करता वो अपनी मोहब्बत को बर्बाद करने का? रोशाइल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत बुरा शख्स हूँ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन मैं बेहिस एक दफ़ा भी तुम्हारा ख्याल ना आया। और देखो ना, खुदा ने कैसे मुझे सज़ा दी, मेरी मोहब्बत को ही निशाना बना डाला। वो बेहोश व हवास पैदा चल रहा था। आज वो भला लग रहा था जिसने घुंघरू पहनकर अपनी महबूब को मनाना था। आज वो मजनू लग रहा था जिसने अपने महबूब से बात करने के लिए गलियों की खाक छाननी थी। ये मोहब्बत का वो महला था कि जहाँ आशिक को अपने महबूब को पाने के लिए ज़मीन की खाक या इसके लिए किसी भी लहाद तक जाने पड़े तो वो जाना था। किस से पूछूं, क्या कहूँ? ये जहाँ बेजान सा हो गया था। खुशी के पल अब ढूंढूं मुश्किल थे, क्योंकि मैंने इसे ज़ख्म इतने गहरे दे दिए थे। जाने इसके लबों में कितने शिकवे होंगे। जो भी है, मैं इसके साथ बहुत बुरा किया। शावेज़ कहाँ जा रहे हो? मेरी याद। जवान ने शावेज़ को रोका। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की है? कहाँ थे तुम? बोलो। जैसे जवाद ने कहा। शावेज़ ने मुंह पर जोरदार थप्पड़ सीध किया और इसे इसके गिरबान से पकड़ लिया। बता साले, क्यों किया तुमने? कितने कमीने दोस्त था तू मेरा, और तुमने मेरी ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। क्यों मुझसे झूठ बोलता रहा? और इसकी शादी हो चुकी है। बता। ये क्या कह रहा है शावेज़? मैं समझा नहीं। वाह तेरा झूठ मुझे पता चल चुका है। मैंने फ़ोन पर सारी बातें सुन ली थी। तुमने मेरी माँ के कहने पर मुझे मेरी मोहब्बत से मिलने नहीं दिया। इतने सारा मुझे इसे धोखे में रखा कि इसकी शादी हो चुकी है। वो तो मैंने ही एंड पे रिकवर किया आदमी छोड़े थे, नहीं तो सारी ज़िंदगी मुझे ना पता चलता और मैं अपनी मोहब्बत को यूं अज़ियत के आग में जलने देता। पर तुझे पता है जिस दिन तूने मुझे इस शादी वाले घर भेजा था, वो किसका घर था? वो मेरी मोहब्बत का मुकाम था, और जिसको मैंने अपने निकाह करके लाया वो थी वो थी मोहब्बत। मेरी बचपन की मंगेतर। तुम्हारी और मामा की लाख कोशिशों के बावजूद मेरी ज़िंदगी खुदा ने इसके साथ जोड़ दी। खुदा के लिए आंटी, मुझे घर से बाहर मत निकालें। मैं वादा करती हूँ मैं किसी कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे ऐसा जुल्म ना करें। मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ भी जाओ भाड़ में जाओ, लेकिन अपनी मनुष्य शक्ल को लेकर दफ़ा हो जाओ। सारा इसका सामान लेकर आओ। वो दोनों बेहिस्से से जानवर की तरह खींचती हुई नीचे ला रही थी। आंटी प्लीज़ ऐसा तो मत करें मेरे साथ। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? क्या कहा? क्या बिगाड़ा तुमने? अरे मेरा सारा घर खा गई और मुझसे ये पूछ रही है। वो जैसे घर में दाखिल होने लगा इसके कदम वहीं रुक गए। तुम्हें पता है तुझे घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया? सर पर गुलदान खुद मार दिया कि कहीं मार दिया कि शावेज तुझे निकाल दे। जैसे शावेज ने सुना वो धक सा रह गया। इस कदर झूठ बोला गया था इसके साथ। ना, खुदा के लिए ऐसा मत करें। मेरा अब इसके घर के अलावा कोई नहीं है। रुकिए खाला, ये ऐसे नहीं निकलेगी। सारा ने आगे होकर इसके नाजुक चेहरे पर जोरदार थप्पड़ सीध किया। जब शावेज ने देखा तो वो खुद को रोक ना पाया। बस सारा और सबीन का रंग उड़ गया। शावेज मेरी जान, तुम आगे। सबीन ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ा और सारा को बाजू से पकड़कर बाहर धकेला। दफ़ा हो जाओ इस घर से। बेटा ये क्या कर रहे हो? सारा को क्यों घर से निकाल रहे हो? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। खामोश हो जाएं आप। नहीं है वो मेरी बीवी। सुन लिया, मैं निकाह कर चुका हूँ रोशाइल के साथ। वो मेरी बीवी है, और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे घर से बाहर निकालने की? बेटा तुमने खुद तो इससे बातें की थी। कब कहा मैंने आपको कि इसे घर से बाहर निकाले? कब कहा? मैंने बताएं। मैंने आज तक एक दफ़ा इसे तलाक देने के बारे में आपसे कहा? नहीं ना, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत है माँ, मेरी मोहब्बत जिसे आपने मुझे छुपाए रखा। शावेज कुछ नहीं, अब कुछ नहीं कहे। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। वो धक से रह गई। मोहब्बत? मैं शावेज की मोहब्बत थी? बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? आपको पता है आपने जवाद के साथ जो मंसूबा बनाया था वो बदकिस्मती से मैंने सुन लिया था। क्यों आपने ऐसा किया? क्यों मुझे मेरी मोहब्बत से मिलने से रोका? और फिर देखे ना कुदरत का मौज़ा, ये कौन है? यही मेरी मोहब्बत रोशाइल और गुड़िया, अंकल वहीद की बेटी। कुछ याद आया? सभी ने जैसे सुना इसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। सारी सच्चाई शावेज को कैसे मालूम हुई? इधर रोशाइल बिल्कुल साकत खड़ी थी। आखिरकार शावेज सच पता चल गया।
था, मगर इसे ये किसने बताया। वो बेहिस खड़ी थी, इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। इसको सबके सामने तस्लीम किया गया। इसकी इज्जत, इसका मान शावेज सिकंदर था, जिसने इसकी ज़िंदगी में बहुत दर्द दिए थे। और शायद शावेज ने इसका हाथ पकड़ कर रोक लिया। इसने हाथ में बहुत मजबूती से पकड़ा था, जो शायद अब वो कभी छोड़ने वाला नहीं था। इतनी जल्दी कैसे भूल जाती है वो दर्द जख्म जो इसे शावेज ने दिए थे। इतनी जल्दी वो कैसे इससे खुश हो सकती, इसकी वजह से जो इसकी बदनामी हुई थी। सबके सामने इसकी इज्जत का तमाशा बनाया गया था। इसका क्या। रोशाइल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। देखो रोशाइल। शावेज रोशाइल की तरफ रुक किया और अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर रखे। तुम्हें याद आया? मैं शावेज, कुछ याद आया? वो इसे कुछ याद करवाने की कोशिश कर रहा था। इसे अपने बचपन की मंगनी के बारे में बताना चाह रहा था, और ये कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। मैं किसी शावेज सिकंदर को नहीं जानती। वो पत्थर दिल नहीं थी, इसे बनने पर मजबूर किया गया था। रोशाइल ने ये क्या कहा और वो आगे बढ़ने लगी थी कि एक आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। इसकी सांसें थम गई। गुड़िया, मैं तुम्हारा शावेज। जैसे शावेज ने कहा, इसने अपने सीने पर जोर से हाथ रखा और अपने दिल को काबू में पाने की कोशिश की। मुझे सब पता चल चुका है। रोशाइल उर्फ गुड़िया, वो अभी तक वही इसकी तरफ पीछा करके खड़ी थी। देखो रोशाइल, वो हमारी फैमिलीज़ के दरमियान जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, और मैं ये गलतफहमी दूर करूंगा और फिर से दोनों घरों में खुशियाँ लाने की कोशिश करूंगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी। कौन सी खुशियाँ, कौन सा साथ, बताओ। तुम्हारी माँ ने जो कर दिया ना शावेज सिकंदर, वही बहुत है। अब कोई खुशियाँ हमारे घर में दस्तक देगी, क्योंकि मेरा बाप मर चुका है और मेरी माँ एक ऐसे जालिम शख्स के शिकंजे में बन चुकी है, जो हर रोज़ मेरी माँ को ताने देता है। और पता है क्या कहता है? कहता है कि राफ़िया बेगम, तेरे पहले शोहर के गंदे खून को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि एक तो तेरी लड़की घर से भागी और दूसरी ने भरी बारात में अपना आशिक बुलाया और इससे निकाह कर लिया। बताओ, क्या सही करोगे? क्या मेरे इन ज़ख्मों को सही कर सकते हो? क्या इनको भर सकते हो? ये देखो कितना जुल्म करती थी वो मुझ पर, और तुम क्या थे? तुम खामोशी से मेरा तमाशा बनते देख रहे थे, क्योंकि तुम्हें क्या मुझसे कोई गर्ज थी? मैं तो एक आवारा और बदचलन लड़की थी, जिसे तुम शराब के नशे में निकाह करके ले आए, और आज तुम्हारी गुड़िया निकली और मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। फ़र्ज़ करो शावेज़, अगर मैं गुड़िया ना निकलती, वही बेसहारा लड़की होती, तो क्या तो मुझे सबके सामने अपनी बीवी तस्लीम करते? नहीं नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें अपनी माँ के झूठे ज़ख्म सच्चे लगते हैं। मेरे जले हुए हाथ में खून रास्ता है तो रास्ता रहे। वो खामोश था, आज वो कुछ नहीं बोल रहा था। क्या कहता है इसने? ना सिर्फ अपनी मोहब्बत के सामने, बल्कि एक मासूम लड़की की ज़िंदगी सबके सामने बर्बाद कर दी थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें वो चाह नहीं दूंगी जो एक बीवी अपने शोहर के लिए रखती है। वो मुकाम कभी नहीं। रोशाइल ने ये कहा और वहाँ से चली गई। इश्क का आखिरी महला था। फराज महबूब नाराज़ था। आरफा बेगम, पानी ला दो, अरशद ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। ये ले पानी, पानी। आरफा ने अरशद अली को सहारा देकर उठाया, जो चारपाई पर बेसहारों की तरह लेटा था। डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी टांगें ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं सकते। ये खबर इनके घर के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन शायद ये अरशद को इसके कर्मों की सज़ा मिली थी। जो वो आज तक इसने अपनी बेटियों के साथ किया था। अपनी बड़ी बेटी का कातिल था ये बाप। कैसे अल्लाह से छोड़ता? अपनी बेटियों को ताने देने वाला ये शख्स, अपनी बेटियों पर हाथ उठाने वाला शख्स, कैसे इसके गुनाहों की तलाफ़ी करता? अरशद अहमद, रात की नींदें उड़ चुकी थी। इसे दानिया की वो फरियादें, वो मिन्नतें सोने नहीं देती थी। इसके जलते बदन में चीखें निकलती, इसे सोने नहीं देती थी। मेरे कपड़े कहाँ हैं? रोशाइल अपने अपने कपड़े ढूंढ रही थी। मेरे कमरे में है। वो पलटी। सामने शावेज खड़ा था, ग्रे कलर की टी शर्ट, जिसको अमूमन आस्तीन कोहनी तक साथ ब्लैक पैंट में मलबूस। वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। रोशाइल को तो हमेशा से ही अच्छा लगता था। इसे तो इस दिन ही मोहब्बत हो गई थी, जब इसने सारा को थप्पड़ मारा था। लेकिन इसके ज़ख्म, इसकी बदनामी शावेज से मोहब्बत करने से रोक लेती थी। वजह ये कि तुम मेरी बीवी हो, तो ये कि तुम्हारे कपड़े मेरे कमरे के साथ अलमारी में होंगे। वो मुस्कुराया। किससे से पूछ के रखे, मैंने कहा था। वो कहती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी कि शावेज ने इसे बाजू से खींचा। वो अपने नज़दीक किया। मिसेस शावेज, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। हाँ मुझे पता है, जो भी मैंने किया वो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हें मनाने की। ज़बरदस्ती करोगे? रोशाइल ने तेवरी चढ़ाई। बीवी हो मेरी, उठा के ले जाऊंगा सबके सामने, इसलिए खुद ही मेरे कमरे को अपना कमरा समझो। वो बेशरम, बहुत बड़े बेशरम हो तुम। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी। अच्छा बात तो सुनो। वो नहीं रुकी। मेरी शर्ट इस्त्री कर दो, मैंने ऑफिस जाना है, खुद कर लो, मुझसे नहीं होते तुम्हारे काम। नहीं तो वो अपनी सारा को बुला लो, वो कर देती है। देख लो तुम्हारी मजाजी खुदा
खुदा शोहर का हाथ जल जाएगा। शावेज ने जैसे कहा, हाँ करो, तुम्हें तो पता चले। वो नहीं रुकी। रोशाइल बेटा, मिर्ज़ा सिकंदर ने इसे अपने सीने से लगाया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। ना रो बेटा, ना रो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ जैसा कोई बदनसीब कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी की बातों में आ गई और अपने बचपन से सारे रिश्ते तोड़ दिए, जिसकी वजह से मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मिर्ज़ा सिकंदर की आंखों से नदामत के आंसू बह रहे थे। इन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी थी। अब क्या कर सकते हैं, अबू तो अब दुनिया से चले गए। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज अब तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया है। तुम्हें पता है वो तुम्हें ढूंढता था। वो तुम्हारी वजह से ही शराब पीता था जब तुम नहीं मिलती थी, और अब वो तो शराब की तरफ देखता नहीं है। लेकिन बेटा, फिर भी तुमने एक बीवी की हैसियत से तुमने इसका ख्याल रखना है। इसकी माँ तो इसका ध्यान ना रख पाई, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशाइल मिर्ज़ा साहब की तरफ देख रही थी। जिस इंसान से वो नफरत करना चाहती थी वही इसकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा था। वो इससे नफरत क्यों नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो था तो इसका शोहर, और शायद मोहब्बत जो बचपन से थी वो उलझ कर रह गई थी। प्यास लगने की गर्ज से वो बाहर आई थी। जब वो किचन में आई कि शावेज चाय बनाने की कोशिश कर रहा था। और शुक्र है तुम आगे, देखो तब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं चाय बन नहीं रही। जैसे रोशाइल ने देखा, सारे किचन को तहस नहस किया था। सॉरी, वो मुझे चीज़ नहीं मिल रही थी। पीछे हटो। वो गुस्से से इसके साथ खड़ी हुई। देखो इतनी आसानी से तो बन जाती है चाय, सीख लो। क्यों सीखो, मेरी बीवी है वो तो बना सकती है मेरे लिए। अच्छा, तुम्हारी बीवी है? हाँ है ना। बड़े ना नक चढ़ी और गुस्से वाली। वो कहीं दिखे ना तो इसे कहना सॉरी। तरपाने के बाद सॉरी। इसने चाय का कप इसके नज़दीक रखा और पानी लेकर चली गई। यार वो मान ही नहीं रही। अरसल मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ वो मान जाए। वाह शाहज़ेब साहब, क्या कहनी है आपके, इसको इतनी अज़ियत दी। तुम्हारी माँ ने जुल्म के पहाड़ तोड़े इस पर, और वो इतनी जल्दी भूल जाए सब। हाँ यार मैं मानता हूँ मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफ़ी तो मांग रहा हूँ इससे। तुमने इसके माँ बाप को सच्चाई बताई? जिसे अरसल ने कहा। कौन सी सच्चाई? शावेद ने चुकते हुए अरसल की तरफ देखा। इस रात नशे में धुंध इसके दामन पर कीचड़ छाला था। इसके बेकसूर को सबके सामने तुमने अपने गंदे इल्ज़ाम में घेरा था। वही सच्चाई जाकर बताओ इसके जालिम बाप को, ताकि इसे सच्चाई पता चले कि इनकी बेटी बदचलन और आवारा नहीं है। ये कहते हुए अरसल ने लम्हे भर को खामोश हो गया। मुझे आज भी इसकी से वो सिसकियाँ याद हैं, शायद जिसमें सच्चाई के आंसू थे, लेकिन कोई इसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। फिर अरसल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ ना अरसल। शावेज के लहजे में नदामत थी। नहीं मेरे यार, तू बदनसीब नहीं है, तुझे बदनसीब बनाया गया है। आज तक सबीन आंटी ने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया। नहीं ने कहा कोई कागज़ में कर दिए दस्तक नहीं होते, और किसी लड़की की इज्जत को बड़ी महफिल में सबके सामने नीलाम करना कोई जेब की बात नहीं है। मुझे अफसोस है कि आंटी ने आज तक तुम्हें क्यों नहीं बताया। मैं अब क्या करूं? अरसर शावेज के चेहरे पर फिक्र उभरी। करना क्या है? कल जाओ रोशाइल के घर और इसके अब्बा को सारा सच बताओ। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशाइल शावेज घर में दाखिल होते से पुकारा। सीढ़ी से उतरती हुई वो आई। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। वो पलटा। कहाँ जाना है? रोशाइल ने जैसे आगे से सवाल किया। शावेज ने अपना रुख इसकी तरफ किया। किसी ज़रूरी जगह पर? इसे ज़रूरी जगह का नाम भी तो होता है। वो तुम गाड़ी में बैठो तो बता दूंगा। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जा रही तो वो मैं खींच कर ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाओगे? वो कहते हुए दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। शावेद ने रोशाइल को ज़ोर से धकेल कर अपने नज़दीक किया कि रोशाइल को उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। बीवी हो तुम मेरी, कहो तो उठा के ले जाऊं। नहीं नहीं मैं आती हूँ, रोशाइल घबराते हुए कहा। शावेज ने मुस्कुराते उसका हाथ छोड़ा। जल्दी करो मिसेस शावेज, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गाड़ी में। इसने गुस्से से तेवरी चढ़ाई और ऊपर ऊपर चादर लेने चली गई। वो भाई गाड़ी में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। अस्सलाम आंटी। शावेज हाथों में फूलों का गुलदस्ता और कुछ तोहफ़े पकड़े घर में दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम बेटा। आरफा बेगम ने इसे पछाने पर बोसा दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, आंखें तो बिल्कुल मिर्ज़ा भाई जैसी गहरी हैं। ये आंटी मैं आप लोगों के लिए लाया था। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं आंटी, ये मेरा अपना घर है। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट आंटी आपसे मिलने कोई आए है। जैसे शाहबाज ने कहा, पीछे से रोशाइल अंदर आई, जिसे माँ ने अपनी औलाद को इसने पलट के रोशाइल को अपने सीने से लगाया। दोनों की आंखों में आंसू आंसू दरिया की तरह बहने। माजी के जख्म फिर से ताज़ा हो गए। कैसी है मेरी बच्ची? आरफा बेगम ने बेख्तियार रोशाइल के चेहरे को चूम रही थी। माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। इसकी औलाद चाहे जैसी भी हो, लेकिन फिर भी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होती है। मैं ठीक हूँ अम्मी। आप क्यों रो रही हैं? रोशाइल ने अपनी माँ का चेहरा, जो आंसू से भीग चुका था, साफ किया। नहीं बेटा, आज इतने अरसे बाद तुझे देखा है ना, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शावेज, नहीं नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये इसका घर है। आओ अंदर।
वो दोनों कमरे में गए। रोशाइल तस्मिया और अली से मिली। बहन भाइयों में प्यार दिख रहा था जैसे वो दोनों बहन भाई रोशाइल से मिल रहे थे। रोशाइल तुम यही रुको, शावेज़ ने इसे तस्मिया के साथ रुकने का कहा और खुद अरशद अहमद के कमरे में गया जहाँ वो लाचारों की तरह चारपाई पर लेटा था। अस्सलाम वालेकुम, शावेज़ ने इनके करीब पे बैठते हुए कहा। वालेकुम सलाम, तुम तो वही हो वो नशे में धुन जिसका निकाह मेरी बेटी से हुआ था। अरे कमबख्त, तो यहाँ क्या लेने आया है? तेरा निकाह तो कर दिया था, अब क्या हमें जलील करने आया है? एक मिनट अंकल, मेरी बात सुनिए, फिर आखिर पे आपने जो कहना होगा वो कह लीजिएगा। सरा जो भी हुआ इसमें आपकी बेटी बिल्कुल बेकसूर थी। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि रोशाइल वाकई मुझे नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने सिर्फ शराब में धुंध होकर एक ऐसा मजाक किया आप लोगों के साथ जो शायद एक मजाक से भी ऊपर हो गया था। वाकई रोशाइल का कोई कसूर नहीं है और वो बेकसूर। इसके दामन में जो कीचड़ उछाला गया था वो बेमायने था। बल्कि अरशद अहमद आपकी बेटी नहायत फर्माबरदार और सब्र तहम्मुल वाली है जिसकी मिसाल नहीं। वो अलग बात है कि इसकी किस्मत में मुझ जैसे शख्स के साथ निकाह करना पड़ गया, नहीं तो वो अगर अगर इतनी बदचलन होती तो वो इस दिन ही इनकार कर देते जिस दिन आप इसके लिए 40 साल शख्स का रिश्ता लेकर आए थे। क्या इसने इनकार किया? बताएं अंकल, क्या इसने एक दफ़ा आपको आगे से कहा कि अब्बा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? क्या क्योंकि वो आपकी इज़्ज़त की रखवाली करना जानती थी? क्या आप इसे क्या क्या नहीं कहते थे? इसे माशरे में बदकिरदार के ताने देते थे, लेकिन एक दफ़ा भी इसने नहीं। आपकी दूसरी बेटियों ने, तस्मिया ने, दानिया ने एक बार भी बदज़ुबानी की नहीं। तो तो फिर आप क्यों उन्हें बदचलन बदज़ुबान कहते थे? बेटियां तो खुदा की रहमत नेमत होती हैं। शावेज़ के अल्फाज अरशद अली के दिल पर एक खंजर की तरह वार कर रहे थे। इसका दिल और रगों में दौड़ता हुआ खून चला उठा। जब इन्हें सच्चाई मालूम हुई, आंखों में नदामत के आंसू बहने लगे। बेख्तियार वो सारे लम्हात याद आ गए जब उन्होंने आखिरी बार अपनी बड़ी बेटी को माथे पे चूमा, घर से इसकी खुशी ढूंढने के बहाने ले गए और इसे जिंदा जला दिया। इसे याद आने लगी वो रोशाइल की फरादें, जब वो चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयान करती थी, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता था। रोशाइल बाहर कमरे के दरवाजे के एक एक तरफ खड़ी थी। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ रहे थे। आज वो शावे सिकंदर से नफरत नहीं कर सकती थी। यही वो शख्स था जिसकी सच्चाई से इसके दामन पर लगा दाग हल्का हो सकता था। पहली बार अरशद अली की आंखों से गिरते आंसू देखकर रोशाइल का कलेजा मुंह को आ गया था। शायद वो जैसा भी था, लेकिन है तो इसका बाप। खुदा के लिए एक दफ़ा मुझे मेरी बेटी से मिला तो मैं बड़ा बदनसीब हूँ। मैंने अपनी ही बेटियों पर शक किया। ये अल्फाज यकीन मानो रोशाइल की सिसकियाँ बुलंद होगी। तस्मिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। ये वो अल्फाज थे कि ये कुछ ऐसे एक संगदिल शख्स बाप के अल्फाज रोशाइल के कमरे में लड़खड़ाते हुए कदमों में दाखिल हुई। वही शर्म हया का किरदार था, वही नेक सलाहियतें जो आरफा बेगम ने अपनी बेटी को दी थी। जिसे अरशद अली ने देखा, इसने बेख्तर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। ये बेटी और ये बाप और बेटी का रिश्ता था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा परखने वाला रिश्तों के दरमियान होता है। रोशाइल अपने सारे गम और ज़ख्म भुला बैठी थी। इसने जल्दी से अपने बाप के हाथों को पकड़ लिया। नहीं 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 अब्बा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे अब्बा हैं। अगर आप मेरे जिस्म को धड़ से अलग भी कर देते तो फिर भी मैं आपको माफ़ को उफ तक ना करती। अरशद अहमद ने सुनते ही इसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो ना, आज अल्लाह ने मुझे ये सिला दे दिया, मैं मजबूर हो गया। तस्मी एक तरफ खड़ी रो रही थी। शायद वो लम्हा ऐसा था कि जो दिलों को तार करने देने वाला था। और तस्मिया, तो माँ बाप के पुकारने ने इसके इसके दिल को पिघला दिया था। जल्दी से अरशद अहमद के सीने से लग गई जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी तरसती थी। अरशद अहमद ने दोनों की पेशानी पर बोसा दी और कहा, मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं वहीद अहमद की तरह तो नहीं, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से सारी खुशियाँ तुम लोगों को दूंगा। दोनों के चेहरों पर आंसू भी थे और एक मुस्कुराहट। लेकिन बेटा, एक बात है जो शायद तुम दोनों मुझे कभी माफ़ ना कर सको। अरशद अली को दानिया की वो चीखें याद आ गई। बेटा, दानिया घर से नहीं भागी थी, बल्कि मैंने इसे खुद से अपने इन गुनाहगार हाथों से मार दिया। क्या आरफा बेगम के मुंह से निकला, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ आरफा, मैंने मारा है दानिया को। मुझे शक था कि वो भाग जाएगी। वो चलाती रही, रोती रही, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी इसकी फरियाद नहीं सुनी। शावेज, रोशाइल और तस्मिया के रोकंडे खड़े हो गए। तुम्हें पता है रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि ख्वाब में मुझे दानिया की वो चीखें याद आती हैं जो वो मुझसे मिन्नतें करती थी, फरियादें करती थी। शायद मुझे खुदा माफ़ करे ना करे, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो आरफा। वास्ता, ये खुदा का वास्ता, शायद अगर अरशद अली रोशाइल को ना देता तो कभी ना माफ़ करती। यही खुदा का वास्ता, अगर आरफा बेगम को ना देता तो वो माफ़ ना करती। खुदा से बढ़कर कोई ज़ात नहीं। जाओ, अरशद अली तुम्हें माफ़ किया। मेरी बेटी बेकसूर थी, मुझे पता था वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। आरफा ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई।
ये अम्मी पानी पी लें। रोशाइल ने सबीन को पानी पानी को रोशाइल ने आरफा बेगम को पानी पकड़ाया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरी देखभाल की। रोशाइल ने सबीन को पानी पकड़ाया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी देखभाल करने की। सबीन को हार्ट अटैक आने की वजह से इसकी तबीयत अब नासाज रहती थी, लेकिन अभी भी इसके दिल में रोशाइल के लिए नफरत कम ना थी। चाहे शावेज़ और मिर्ज़ा सिकंदर ने तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तुमने मेरी भांजी का घर तबाह कर दिया। मेरी बहू सिर्फ सारा है, सुन लिया तुमने। मैं यहाँ मेडिसिन रख के जा रही हूँ, खा लीजिएगा। रोशाइल ने थम्मुल भरे लहजे में कहा और कमरे से रवाना होगी। रोशाइल उठो, रात के 12 बजे। शावेज़ ने आवाज़ दी, क्या हुआ है? उठो तो सही शावेज़ प्लीज़ मुझे सोने दो। उसने करवट बदली। शावेज़ बेड से उठा और उसका हाथ पकड़ा और उठाया। मलका आलिया, हैप्पी बर्थडे मिस रोशाइल। जैसे शावेज़ ने कहा कमरे की लाइट्स ऑन होगी, वो हाथ में केक पकड़े खड़ा था। वो बिल्कुल हैरान थी, इसे अभी तक इसका बर्थडे याद था। क्या हुआ? केक काटो। इसने केक नाइफ से थमाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शावेज़ ने केक रोशाइल को खिलाया। थैंक यू, रोशाइल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, तुम्हारी बर्थडे मैं कभी नहीं बोलता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। पहले खड़ी हो शावेज़। शावेज़ खड़ी तो हो। शावेज़ ने रोशाइल को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। डायमंड रिंगट। रोशाइल ने चूंकते हुए शावेज़ की तरफ देखा। हाँ, क्यों पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तुमने ओ मिस, ब्रेक लगाओ, कुछ नहीं होता। तुम मेरी बीवी हो और शोहर का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी को खुश रखे, इसकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करे। और शोहर जो भी चीज़ तोहफ़ा वगैरह लाए ना, तो बीवी को खुशी से कबूल कर लेना चाहिए। अरे वाह, आप तो बहुत नेक परवीन है। देख लो तो फिर तुम्हारा शोहर कितना समझदार है, लगते तो नहीं हो। क्यों, आजमा के देख लो। नहीं, मैं नहीं आजमाती। वो बेड की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो? शावेज़ ने हाथ पकड़ते हुए कहा। जन्नों में जाना है क्या? हाय, जन्नों में? वो तो औरतों की कसरत दाद का ठिकाना है। हाय, जैसे तो मर्द जन्नत में ही डाले जाएंगे। हो सकता है, शावेज़ ने मुस्कुराते तंज किया। तुम्हारी सोच है, वो ये कहते हुए फिर मुड़ी। अच्छा सुनो तो सही। क्या शावेज़, थोड़ी देर और बातें कर लें? सुबह ऑफिस से जाने का इरादा नहीं है क्या? तुम कहो तो नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तो हरगिज़ नहीं कहूँगी। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ कहना है। इसने रोशाइल के दोनों हाथों अपने हाथों में लिए। देखो रोशाइल, मैं जानता हूँ ज़िंदगी ने हमें कैसे मिलाया, ये नाकाबिले तवक्को था। और तुमने जो कुछ भी सहा, मामा का जुल्म, मेरी तरफ बातें, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और हमेशा ये मेरे दिल में रहेगा, चाहे तुम मुझे माफ़ भी कर दो। लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद कोई दुख नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि रोशाइल, मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। मुश्किल वक्त हो या कुछ भी, तुम्हारा शौहर कदम कदम तुम्हारे साथ रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आसान हो गया। शावेज़, चलो आप सो जाओ। जालिम बीवी, कदर करो मेरी। शावेज़ ने हंसते हुए कहा। रोशाइल मुस्कुराई और लेट गई। नींद कहाँ आनी थी इसे, तो वो बस इसे रोक रही थी, क्योंकि इसे पता था कि अगर शावेज़ से वो और बातें करती तो वो खुद को इसके सामने कमज़ोर महसूस करने लगती। इसकी बातें याद करते हुए मुस्कुरा रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इसने इसका इम्तिहान कामयाब कर लिया। शावेज़, तुम मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी हो जिसके बगैर मैं एक पल गुजारा नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों मैं खुद को तुम्हारे सामने कमज़ोर महसूस करने लगती हूँ। जब जब तुम मेरी परवाह करते हो, जब घर आते हो, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हो, जब जानबूझकर मुझे बुलाने की कोशिश करते हो और बार बार मुझ पर अपना हक जताते हो। पता नहीं क्यों बढ़ते दिनों में मुझे तुम्हारी ये हरकतें भाने लगी हैं। चाहे तुम जैसे भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी हूँ। और ये बात शायद मुझे से कभी ना करार हो सके, क्योंकि शायद माजी के ज़ख्म इतने गहरे निशानात छोड़ गए हैं कि रूह कांप उठती है। और शायद शावेज़ की तरह मुँह किया था जो सोया हुआ था। शावेज़, उठो, बाबा नीचे तुम्हारे नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे हाथ धोती है, कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ। मैं जाने लगी हूँ। ठीक है, बाद में आता हूँ। अच्छा, आ गया। हाँ, आ जाओ प्लीज़। ये मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल रखे हैं, फ्रेश होकर होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। रोशाली कहती हुई कमरे से बाहर रवाना होगी। ये ले बाबा आपका जूस, थैंक यू सो मच बेटा। आओ तुम भी करो नाश्ता। जी, रोशाली ये कहते हुए चेयर पर बैठ के सभी को नाश्ता दे दिया गया। जी हाँ, मुलाजमा के हाथ भिजवा दिया है। आपको तो पता है वो मुझे देखना पसंद नहीं करती। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज़, जी बाबा जानिए, आज हमारी मीटिंग थी मिस्टर मकसूद के साथ। जी, आज 11 बजे है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस्टर मिर्ज़ा कहते हुए बाहर की जानिब रवाना हो गए। हेलो सारा मेरी जान, मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। तो
वो उखड़ी क्या तो क्या बेटा, मैं इस मनूस की शक्ल नहीं देखना चाहती। देखें खाला, वो मनूस तो अब आपके घर की बहू बन चुकी है। अब चाहे आप इससे जो मर्जी कहें, आपके बेटे ने इसे घर से निकालने की बजाय मुझे घर से निकाला। अरे वाह, सारा खेल आप खेलती रही शावेज के साथ और विलन में। वो वाह, बहुत अच्छा गेम प्लान किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वही कह रही हूँ जो आपने सोचा और किया। और एक बात याद रख ले, मैंने शादी सिर्फ शावेज के साथ करनी है, पूरे ख़ानदान के साथ नहीं। कि सबका ठेका नहीं लिया मैंने। सुन लिया अपने भाड़ में जाएं आप और आपका बेटा। सारा ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। सबीन वही ढंग से रहेगी। इसका अपनी बहन का खून ही इसके साथ इतनी बदतमीज़ी की। और सारा जिसके लिए मैंने इस लड़की को इतनी बातें सुनाई, आज वही मुझे बेसहारा छोड़ गई। शायद मुझे सज़ा मिली है जो मैंने इसके साथ इस कदर जुल्म किया। सबीन की आंखों में आंसू बहने लगे। इसका दिल कर रहा था कि ऊंची ऊंची आवाज़ में रोए, लेकिन वो क्या करती। आंटी ये दवाई ले ले। जैसे रोशाइल अंदर दाखिल हुई, इसने मेज़ पर दवाई रखी और बाहर जाने लगी। रुको। सबीन के कहने पर इसके कदम वहीं रुक गए। इधर आओ, मेरे पास बैठो। सबीन ने अपने हाथ बेड पर बैठाने का इशारा किया। वो हिचकिचाती और बेड की तरफ बढ़ी। सबीन ने रोशाइल का हाथ अपने हाथ में लिया। कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो तो क्या तुम मेरे सारे जुल्म भुलाकर मुझे माफ़ कर दोगी? सबीन की आवाज़ में नदामत झलकी। आंसू से इसका चेहरा भीगा था। जी मैं आपको माफ़ कर दूंगी, क्योंकि गफूर दरगुजर करना सबसे बड़ी बात है। तो खुदा के लिए रोशाइल, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें इतनी अजियत दी। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम्हें तुम्हारी ये सब कुछ करने की सज़ा शायद तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की सज़ा पाई है। अब अपने ही मुझे छोड़ गए हैं। नहीं आंटी, ऐसी बात मत करें। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात माफ़ की, तो वो मैं आपको कब का कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप रोइए मत। क्या करूँ रोशाइल, ये आंसू रुकते नहीं है। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने आपको सीधे रास्ते पर चलाया। बेटा, तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। मैंने तुम पर इतना जुल्म किया, क्या क्या नहीं किया। कहा तुम्हें तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई, ताकि मैंने ये तक भूल की कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। किसी पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि चार उंगली हमारी तरफ भी होती है। मैं ना तो एक अच्छी सास और ना ही एक अच्छी माँ बन सकी। अपने ही सगे बेटे की खुशियों की दुश्मन थी, इस कदर के अपने इन हाथों से खुद अपने बेटे की खुशियाँ छीन ली और इसकी मोहब्बत से अलग करने की बहुत कोशिश की। लेकिन देखो ना, इसकी मोहब्बत में तड़प थी, क्योंकि वो गुड़िया से बहुत प्यार करता था और करता है। और तुम्हारा नकाब भी इससे हो गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहक गई थी। मैंने वही साहब और मिर्ज़ा सिकंदर की दोस्ती में दरार पैदा की, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों का रिश्ता ना हो सके। लेकिन मैं शावेज के दिल से कभी भी तुम्हें निकाल नहीं पाई। खुदा के लिए रोशाइल, मुझे माफ़ कर दो। जैसे सभी ने अपने दोनों हाथ इसके सामने किए, इसने जल्दी से इन हाथों को थाम लिया। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत करें। और रही बात माफ़ी की, तो मैंने आपको माफ़ किया। अगर मेरा खुदा इतना रहीम करीम है, वो चाहते हैं कि आप दुरुस्त रास्ते पर चले, तो फिर मैं कैसे आपको रोक सकती हूँ? आप मेरी बड़ी हैं। हाँ, जो भी गलतियाँ माजी में हुई होंगी, लेकिन इनकी तलाफ़ी तो की जा सकती है। और मुझे यकीन है कि अम्मी आप सब कुछ भुला कर पहले जैसी हो जाएंगी। ये सुनते ही सबीन फुट फुट कर रोने लगी। से बेख्तियार रोशाइल को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। रोशाइल, आप भी बहुत अच्छी हैं। रोशाइल की आवाज़ भीगी। खुदा ने इसे इतनी खुशियों से नवाज दिया। वाकई खुदा ताला बड़ा नवाजिश वाला है, जो अपने बंदे को इम्तिहान में कामयाबी पर बहुत खुशियों से नवाजता है। और आज इसने मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लौटा दी। कुछ माजी की तलखियाँ थी जो कभी भूली तो नहीं जा सकती, लेकिन भूलने की कोशिश तो की जा सकती है। ज़िंदगी का ये असूल है कि आजमाइश के बाद खुशी दस्तक देती है, लेकिन आजमाइश के मराहल इतने आसान नहीं होते। इसमें सब्र और शुक्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। और अगर इसी असूलों को अपना लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। वो कहते हैं ना, हर गम की काली रात के बाद खुशी का जाला ज़रूर होता है। हेलो मिसेस शावेज, प्लीज़ ऐसे चोरों की तरह ना डराया करो। क्यों, तुम डर गई? नहीं, मैं तो नहीं डरी। इसने जूस का गिलास पकड़ते हुए कहा। कहाँ लेकर जा रही हैं? आंटी को जूस देना हो। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पर शायद अब हो जाए। क्या बात यह है कि मलका आलिया आज रात डिनर करने आप मेरे साथ बाहर जाएंगी? तो बोलिए, मंजूर है। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस मुआहदे को मुस्तरद करती हूँ। देख लीजिए, नहीं तो इसने बात आगे बढ़ाई। नहीं तो हम आपकी याद में शराब पी लेंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, ऐसा करने से क्या होगा तो कुछ नहीं, बस ज़रा घर लेट आऊँगा। शावेज, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम शराब नहीं पियोगे। इसने घबराते हुए तलकीन की। जब तुम आओगी नहीं तो फिर किसी को तो साथ होना चाहिए। रात 9 बजे गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो ये कहते हुए चला गया।
मिलर कहीं का रोशाइल ने दबे हुए लहजे में कहा और ब्लैक मिलर कहीं का, रोशाइल ने दबे हुए लहजे में कहा और सबीन के साथ सबीन के कमरे में चली गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है सबीन तुम्हारे इस फैसले में। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि रोशाइल से अच्छी बेटी और बहू हमारे शाहबाज के लिए कोई नहीं है, लेकिन शायद तब तुम्हें समझ नहीं आई। तुम्हें पता है मैंने जब पहली दफ़ा देखा था तो देखा था इसे, तो मुझे इसमें वहीद का अक्स नज़र आता था। आरफा बहन की तरबियत है, लेकिन मैं पहचान ना पाया। चलो जो भी हो चुका है, अब हम फिर नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। वहीद इस दुनिया में होता तो इससे माफ़ी मांगता। ये कहते ही मिर्ज़ा सिकंदर की आंखें भीग गई। प्लीज़ मिर्ज़ा साहब, आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। सारा जहर मैंने घोला था। आपकी दोस्ती में दरार मैंने पैदा की थी, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। खैर सबीन, अब जो हो गया। मिर्ज़ा सिकंदर ने अशर अहमद के घर के करीब गाड़ी रोकी और इनके दरवाजे पर दस्तक दी। जिसे तस्मिया ने दरवाज़ा खोला वही दंग रह गई। मिर्ज़ा सिकंदर और सबीन ने बारी बारी से अपने सीने से लगाया। कौन है तस्मिया, कौन आया है? ये कहते हुए आरफा बेगम जब दरवाजे पर आई, इसके मुंह से बेख्तियार ये अल्फाज निकले, मिर्ज़ा भाई, मेरा तुमसे तुम्हारी दोस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई ताल्लुक़ नहीं। आरफा को सारा माजी की यादें फिर से ताज़ा होगी। इसकी ज़िंदगी से बेख्तियार आंसू निकले। आइए आइए ना अंदर। आरफा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ अपनी तमाम गलतियों की जो मैंने की थी। तो मुझे इल्म है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपनी गलतियों पर नादिम हूँ। आरफा, मैंने जो कुछ भी किया वहीद भाई जैसे सच्चे इंसान की दोस्ती को झूठा साबित किया। मिर्ज़ा का तो कोई कसूर नहीं था। आरफा, जो भी किया मैंने किया, मगर देखो ना किस्मत ने हमें फिर से जोड़ दिया। हमारे बच्चों का निकाह में बनना एक कड़ी थी जिसने हम दोनों ख़ानदानों को मिलाया। आरफा खामोश थी। वो क्या कहती, जो भी कहना था वो तो वही साहब कहते, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखें भाभी, आप फिक्र मत करें, हम अरशद साहब का बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे और परेशानी वाली कोई बात नहीं। मिर्ज़ा सिकंदर ने थम्बल अंदाज में कहा, अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। आप भी आइए ना, रोशाइल को अच्छा भी लगेगा। जी जी ज़रूर, आरफा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। 9 बजे में 1 मिनट रह गया था। रोशाइल सामने से आती हुई मालूम हुई। ब्लैक फ्रॉक में मलबूस इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर रंगत का नूर, नकुश और मासूमियत का पहरा था कि हर कोई दिखता रह जाता। मुझे पता था तुम आओगी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं शराब पीऊँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है तो जो तुम सोच रहे हो। वैसे आज तुम बहुत पहले लग रही हो। क्यों, पहले नहीं लगती थी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम तो मुझे हमेशा से खूबसूरत लगती थी और लगती हो। तभी तो ये दिल तुम पे हारा। इसने सिर्फ तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए। वो बड़ा शराना बातें करने लगा। जी, आपकी मोहब्बत का असर है तो तुम कोई और बात नहीं कर सकते? जी ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं तो आपकी ही बातें करूँगा, शाहवेज़ ने कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा दे। पागल, रोशाइल ने मुस्कुरा कर कहा। प्यार में, शाहवेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। अरसल तो मुझे कहाँ ले आया है? जैसे अरसल ने शाहवेज़ की आंखों से पट्टी खोली। रोशाइल, आप मुझे कहाँ लेकर हैं? जैसे रोशाइल ने शाहवेज़ की आंखों से पट्टी खोली, शाहवेज़ एकदम चौंक गया। ये वही जगह थी जहाँ चारों सॉरी अरसल, तुम मुझे कहाँ ले आया है? जैसे अरसल ने शाहवेज़ की आंखों से पट्टी खोली, शाहवेज़ एकदम चूक गया। ये वही जगह थी जहाँ ये चारों दोस्त बैठकर अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त गुजारते थे। शाहवेज़ की आंखों में आंसू आ गए। दोस्ती का रिश्ता था इनके दरमियान, लेकिन जवाद की बेरुखी से शाहवेज़ अब कभी इकट्ठा नहीं बैठा था। यार शाहवेज़, अब ऐसे तो मत कर। देख, माफ़ी मांगता हूँ यार, मुझे माफ़ कर दे। सिर्फ एक दफ़ा काले साले गले से लगा बड़ा तरस गया हूँ। जवाद की आंखों में आंसू की लहरों की तरह टपक रहे थे। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। चल पीछे हट, शाहवेज़ ने दिक्कत दी और फिर जोर से गले लगा लिया। ये दोस्ती की मिसाल है यारों, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता है जो दिलों में बस जाता है, जो सांसों को जोड़ देता है। भी ताल्लुक तोड़ने की बात ही क्या। आज ये चारों दोस्त फिर से मिलकर इकट्ठे बैठे थे एक दूसरे की ज़िंदगी हला जाने के लिए। सबके चेहरों पर एक अलग से मुस्कुराहट थी। 12 बज गए हैं, हद होती है लापरवाही की भी। कहाँ रह गए हैं? पता भी है मुझे नींद नहीं आई, लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो मज़ा आता है ना। वो मेन दरवाजे के करीब खड़ी बार बार चक्कर लगा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखती। रोशाल का दिल बेकाबू हो रहा था। शाहवेज़ फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। वो अभी इसी फिक्र में थी कि दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ रोशाल ने सुनी, जैसे इसने शाहवेज़ को देखा, वो भाग कर शाहवेज़ के गले लिपट गई। शुक्र है तुम ठीक हो। पता नहीं
तुम ने मेरी जान निकलवा दी थी। पता भी है शावेज़ मेरी क्या हालत हो जाती जब तुम घर लेट आते हो। वो मुसलसल बोल रही थी। अभी तक इसने मजबूती से शावेज़ को झगड़ा हुआ था। बात करते करते वो अचानक रुक गई, क्योंकि शायद वो सब कुछ भूल गई थी जो वो शावेज़ के सामने बोलने से रुकती थी। वो मैं रोशाइल मौजू तब्दील करना चाह रही थी, लेकिन इसकी ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। शावेज़ ने इसे अपने सामने किया, उसके माथे पर चूमा और कहा, जब तक तुम मेरे साथ मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो मैं फ्रेंड्स के साथ लेट हो गया, और हाँ, शराब को हाथ नहीं लगाया। इस बात पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। खुशियाँ ही खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में भर आई थी, जिन्हें शायद जिनकी तवक्को रोशाइल ने नहीं की थी। सबीना मिर्ज़ा सिकंदर का रोशाइल के साथ और उसके घर वालों के रिश्ते और गहरे मोहब्बत के रिश्ते में बन गए थे। दोनों घर आपस में हंसी खुशी मिलते, और आखिर बड़ों के दरमियान तय पाने वाले फैसले पर रोशाइल और शावेज़ एक बार फिर सब रिश्तेदारों के सामने धूमधाम से शादी की गई, और सबके सामने रोशाइल को शावेज़ सिकंदर की बीवी तस्लीम किया गया। 2 साल बाद तुम्हारी आदतें आज भी वैसे की वैसी ही हैं शावेज़, जल्दी उठो, इतना टाइम हो गया है। रोशाइल ने शावेज़ को आवाज़ देते हुए कहा, और यूँ इनकी इनकी एक नई ज़िंदगी की शुरू शुरू होगी, और यूँ इनकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत ही अच्छा नावल था। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। काइंडली कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये नावल, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करें, लाइक किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। आपसे रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और मज़े का नावल लेकर बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।